So, hello everyone. Am I audible? Hello. Hello. Am I audible? Okay. Hmm. 13 लोगों ने मीटिंग ज्वाइन की है. ओके. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. हेलो एवरीवन, दिस इज अक्षय मालवीय एंड आई एम फ्रॉम कैडीमेट. And in this lecture I will explain what about the ANSYS, and the whole workshop will be demonstrate about the ANSYS workbench multiphysics. So guys, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ. मीटिंग में 13 लोगों ने ज्वाइन किया है और इससे पहले मीटिंग में 24 पीपल्स ने ज्वाइन किया था, वो भी आउट ऑफ 100 प्लस. तो ये मान के चलता हूँ कि 100 प्लस में से सिर्फ इतने ही लोग हैं जो अपने फ्यूचर के लिए बहुत डेडिकेटेड है एज बीइंग ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग. ओके. सो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आप सबसे जानना चाहूँगा, आप सबका इंट्रोडक्शन में आप लोग सब अपना नाम, कौन से ईयर में हो और फ्यूचर में क्या करोगे. फ्यूचर मीन्स फाइनल ईयर के बाद क्या प्लान्स हैं, लाइक प्लेसमेंट, फर्दर स्टडीज़ या मैनेजमेंट, बिजनेस, वट एवर, गवर्नमेंट जॉब, गेट. ओके. सो मैं जिसका नाम लूँगा वो अपना माइक अनम्यूट करेगा एंड अपना इंट्रोडक्शन देगा और माइक म्यूट करेगा. ओके. यस सर. ओके. सो सबसे पहले आर्यांश पांडे. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आर्यांश. Sir, this is Aresh Pandey from Mechanical Department, third year, ओके. and my center of interest is in designing of the product and material, like working in the SolidWorks, AutoCAD, like this. ओके. And my goal is to crack GATE exam in 2022. I am preparing for that. वेल एंड गुड. नेक्स्ट अभिषेक. Yes, sir. Good afternoon. My name is Abhishek Sharma, and I am in third year in mechanical engineering. ओके. And I am thinking of working in the field of product design and manufacturing in this particular domain. ओके. एंड व्हाट अबाउट योर फ्यूचर प्लान्स. This interest I have developed. Actually, sir, I recently came to know about the domain certification of NPTEL. ओके. So once I complete a certain number of courses in this field ओके. from their platform, ओके. I will be getting a domain certification in this product design domain, and maybe I will try to get a job in this field. ओके. ओके. Thank you, sir. वेरी गुड. नेक्स्ट पीयूष. Good afternoon, sir. Good afternoon, Myself Piyush. Piyush Agarwal. I am from third year in mechanical engineering department. ओके. Currently, I am preparing for GATE, but also I am want to go in the field of product design and manufacturing. ओके. वेरी गुड. एंड नेक्स्ट इज अजय मीरवाल. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून. My name is Vimal. I am from third year mechanical department. ओके. My interest is in design, but I want to go in PSU via GATE. ओके. ओके. सो आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गेट ऑल्सो. Yes, sir. ओके. ओके. नेक्स्ट इज अक्षत. Good afternoon, sir. My name is Akshat Jain. I am from third year mechanical, and my future goals are to design my own product and start a company based on that.
ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट इज अमित. अमित, Amit, am I audible? ओके, स्किप करते हैं. नेक्स्ट इज बादल सिंह शेखावत. Yes, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. My name is Padul. I'm in third year mechanical branch. ओके, I'm studying for GATE and also I've done some certification course on introduction to self-driving cars. ओके, So I'm looking forward to work in that field. वेरी गुड, बहुत अच्छे. नेक्स्ट इज देवेश. देवेश, ओके. नेक्स्ट इज कुणाल जैन. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून कुणाल. Sir, my name is Kunal Jain and I'm from final year mechanical. And currently I am looking for a job to just take the experience and then I'll go for government exams. ओके, आर यू इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट एग्जाम? Yes. Yeah, okay. Piyush is done, and next is Sahil. Yes, good afternoon, sir. My name is Sahil Ansari. I am studying third year mechanical engineer. Okay. मैं तो प्लेसमेंट लेकर थोड़ा मतलब आगे प्राइवेट ही पढ़ाई करना चाहूँगा. Okay. And Satvik. Good afternoon, sir, and everyone. Myself Satvik Sen from BTech third year mechanical, and I want to join mechanical department like designing field. Okay. Okay. So only 11 peoples. No issue. तो मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि जितने भी 11 लोगों ने यहाँ पे ज्वाइन किया है वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है. किसी को जॉब के लिए चाहिए, किसी को हायर स्टडीज़ के लिए, कोई गेट के लिए, कोई सेल्फ स्टडीज़ के लिए. आप सभी लोग मतलब इंटरेस्टेड हो आउट ऑफ 100+ में. ओके. आप लोगों ने सॉलिड वर्क्स की क्लास ली थी जो रवि सर ने दी थी. Yes, sir. ओके. तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों को बेसिक 3D मॉडलिंग आती है. Yes, sir. बेसिक 3D मॉडलिंग आप करना सीख गए. लाइक स्केच क्या होता है, डिज़ाइन क्या होता है, एंड 3D फीचर्स क्या होते हैं आपको यूज़ करने आ गए. आप ड्राइंग्स देख के इजीली छोटी मोटी ड्राइंग्स एंड असेंबलीज क्रिएट करना आप सीख गए. मैं ये मान के चलता हूँ. यस. ठीक है. अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ डिज़ाइन के बारे में, बेसिकली मैं डिज़ाइन इंजीनियर नहीं हूँ. ओके. मैं CAE पे काम करता हूँ, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग मल्टी फिजिक्स. तो आप लोगों ने सॉलिड वर्क्स की क्लास ली है तो मैं सॉलिड वर्क्स के बारे में कुछ बात करूँगा आपसे. आपके अकॉर्डिंग सॉलिड वर्क्स क्या है, क्यों सॉलिड वर्क्स अपन यूज़ करते हैं? कोई भी एक जना बताओ, कोई भी एक. सर 3D के लिए इसको यूज करते हैं Microsoft को. 3D मॉडलिंग के लिए यूज़ करते हैं. एंड सर अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स कुछ असेंबल करके देखना या डिसअसेंबल करके देखना. तो विजुअलाइज करना अपने प्रोडक्ट को, कोई भी बना रहे हो तो उसको विजुअलाइज करके किस तरह से दिखेगा रियल वर्ल्ड में, डायमेंशन, स्पेसिफिकेशन सारे. ओके, वेल एंड गुड. एंड और अभिषेक, आर्यांश. यस सर, यही कि कोई भी प्रोडक्ट बनाना है तो पहले उसकी डिजाइन करनी होगी. सर 3D मॉडल बनाना प्रोजेक्ट का. 3D मॉडल बनाना प्रोजेक्ट का, ठीक है, बहुत अच्छे. ये चीज़ें तो होती है, लेकिन ये सारे सब कैटेगरीज में आते हैं. अगर एक वर्ड में कहूँ तो अपन सॉलिड वर्क्स क्यों यूज़ करते हैं? सॉलिड वर्क्स, कैटिया या फिर कोई भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर अपन क्यों यूज़ करते हैं? अगर मैं सर ताकि प्रोटोटाइप अपन वर्चुअली देख सके, रेदर उसको बिल्ड करके और कॉस्ट उसमें इंक्रीज करना प्रोडक्ट की. प्रोडक्ट नहीं कह सकते अपन,
प्रोडक्ट एक अलग चीज़ आ जाती है। जो भी अपनी डिजाइन कर रहे हैं, जो भी चीज अपने पास है, जिसके ऊपर भी डिजाइनिंग हो रही है, तो अगर मैं पूछूँ डिज़ाइनिंग क्या है, तो डिजाइनिंग उसका बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना कि जिसकी मतलब जिस बेसिस पे उसको एंड जिस वजह से उसका स्टार्ट हुआ है उस चीज में उसकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना कि वो प्रोडक्ट वहाँ यूज हो सके, मतलब डिजाइन के बाद। एक एग्जांपल देके आप मुझे बता सकते हो कि डिज़ाइन क्या है? सर जैसे अगर कोई एक बॉटल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ओके। तो वो अगर बॉटल्स मैन्युफैक्चर करना चाह रही है, तो अगर उसको मैन्युफैक्चर करना है तो उसको पहले एक डिजाइन चाहिएगा बेसिक कि ये बॉटल इतना कैपेसिटी की होनी चाहिए और इसका शेप भी होना चाहिए, ये इतना लोड ले सकती है। वो तो डिज़ाइनिंग जो में नहीं डिजाइन आता, वो डिज़ाइनिंग में नहीं आता। वो कितना लोड ले सकती है, वो कितना चलेगा, दिस इज नॉट कंसिडर्ड इन डिज़ाइन। एक्चुअल में डिज़ाइन क्या ये है? उसकी रिक्वायरमेंट्स है, हाँ। रिक्वायरमेंट्स है। जैसे शेप वगैरह का डिजाइन हो गया, उसके बाद उसके ऊपर जो एनालाइज पार्ट होगा वो उसके लोड और वो सब कैपेसिटी निकालेगा। एक वर्ड में अगर मैं कहूँ डिज़ाइन, डिज़ाइन मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। आप किसी भी प्रॉब्लम को कितनी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। डिज़ाइन एक पेपर पे भी हो सकती है, डिज़ाइन एक सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, डिज़ाइन एक इंटरेक्शन में भी हो सकती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि डिज़ाइनिंग के लिए अपन कैड सॉफ्टवेयर यूज़ करें। अगर मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक अच्छी है, मैथमेटिक्स अच्छी है, मैं पेपर पे भी डिज़ाइन सॉल्व कर सकता हूँ। स्ट्रेस स्ट्रेन सब ने पढ़े, ड्राइंग्स पीजी एमडी सब ने पढ़ी है, सबको आती है। इंजीनियरिंग में अपन यही चीज़ें पढ़ते हैं। तो डिज़ाइन को अपन ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि ठीक है 3D सॉफ्टवेयर में कुछ मॉडल कर दे या फिर कुछ प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन को अपने बना दे तो वो डिज़ाइन हो गया। अपन एक दो जने से किसी से इंटरेक्ट करके भी अपन कोई चीज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। गॉट इट? उस डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए मेरे पास एक आइडिया आ गया, ठीक है, मैंने कोई आइडिया सोचा, आइडिया मीन्स डिज़ाइन मैंने सोचा, कोई प्रॉब्लम सोची मैंने। प्रॉब्लम इन द सेंस अगर मैं एग्जांपल देके बताऊं तो मुझे चलने में दिक्कत आती है। तो किसी ने ये सोचा था बहुत पहले कि यार आदमियों मतलब जो ह्यूमंस होते हैं उनको ट्रैवल करने में दिक्कत आती है, तो ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेकर जाए या फिर ऐसा कुछ डिज़ाइन लेके आया या फिर ऐसा कुछ आइडिया लेके आया जाए कि ये प्रॉब्लम सॉल्व की जा सके। तो उन्होंने कहा ठीक है साइकिल्स हैं, साइकिल्स पे क्या लोड कैपेसिटी कम है, फास्ट ट्रैवल कर नहीं सकते, एफिशिएंसी इतनी है नहीं। तो फिर धीरे धीरे डिज़ाइन को इनोवेट किया गया, आइडिया के ऊपर काम किया गया। आइडिया के ऊपर काम करने के लिए अपने क्या क्या यूज़ किए, कमर्शियल मेथड्स लिए, एक्सपेरिमेंट मेथड्स लिए। उस टाइम उतना कंप्यूटेशनल मेथड्स नहीं थे। कंप्यूटेशनल मेथड्स इन द सेंस कंप्यूटर्स, 3D मॉडलिंग टूल्स, CFD टूल्स, CAE टूल्स, ऑटोकैड उस टाइम इतने नहीं थे। उस टाइम अगर किसी को भी एक पार्ट की भी ड्राइंग करनी होती, ड्राफ्टिंग करनी होती थी तो वो शीट एंड पेपर यूज़ करता था। शीट ले ली एंड ड्राफ्टर ले लिया तो उसको पार्ट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। और अगर किसी चीज़ की टेस्टिंग करनी होती थी कि ये मेरा प्रोडक्ट कितना चलेगा, तो वो एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज़ करते थे। एक्सपेरिमेंटल मेथड या फिर थ्योरेटिकल अप्रोच लगाते थे, क्योंकि अपने पास दो ही होते हैं। अपन बुक्स पढ़ते थे, इंजीनियर्स बुक्स पढ़ते हैं, उसमें लिखा होता है स्ट्रेस ये होता है, स्ट्रेन ये होता है, ये होता है, वो होता है। अपन आइडियल कंडीशन कंसीडर करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करते हैं। गॉट इट? लेकिन क्या हो जब बड़ी प्रॉब्लम्स हो, ऐसी प्रॉब्लम्स जहाँ पे मतलब कि उनको ह्यूमन सॉल्व नहीं कर पाएंगे और जनरली नहीं कर पाते सॉल्व। अगर आपने इंजीनियरिंग ढंग से पढ़ी हो अच्छे से, तो एक सब्जेक्ट होता है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स में ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन लगती है, फॉन कार्बन इक्वेशन होती है, वो लगती है। कुछ हद तक अपन सॉल्व कर सकते हैं ह्यूमंस, लेकिन कुछ ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है जिसमें ह्यूमंस की कैपेबिलिटी नहीं होती कि उसको सॉल्व आउट कर सके, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं। जनरली अपन किसी चीज़ को कंसीडर करते हैं प्रेशर कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक तो वेरिएबल को कांस्टेंट मानकर अपन इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर उसके अंदर अप टू 50+ वेरिएबल्स हो या फिर जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा हो, 5, 6, 7, 8, तो एक ह्यूमन उसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आज के टाइम पे अलग मेथड्स आए। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, डिज़ाइनिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉफ्टवेयर्स आए, जिन्हें अपन कैड सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, CAE सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, कैम सॉफ्टवेयर्स कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स जिसमें अपन उन प्रॉब्लम्स को बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटेशनल पावर उसको सॉल्व करते हैं, जिससे अपना क्या होता है कि टाइम रिड्यूस होता है। एक्सपेरिमेंटल जो चीज़ होती है उससे भी अपना मतलब डाटा रिड्यूस होता है।
कि मुझे बार बार एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं, फिजिकल मॉडल बना के प्रोटोटाइप बना के उसको टेस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसी काम को एक सॉफ्टवेयर पे कर सकता हूँ। बार बार प्रोटोटाइप बना लिया, बार बार डिज़ाइन मैंने मॉडल चेंज कर लिया, बार बार उसके ऊपर लोड वगैरह जो भी कैलकुलेशन वगैरह करके मैं एक फाइनल ऑप्टिमाइज रिजल्ट पे पहुँच सकता हूँ। तो ये आज का मेथड है। पहले मेथड्स होते थे कि ठीक है, डिज़ाइनिंग क्या है कि मेरे कोई प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मुझे गाड़ी बनानी है, गाड़ी का कॉन्सेप्ट आया था कि हाँ 4 टायर भी होने चाहिए। तो 4 टायर उस टाइम किसने किए? लोगों ने ड्राइंग ही की होगी कि हाँ ड्राइंग ऐसी होनी चाहिए, 4 टायर ऐसे होनी चाहिए। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऑप्टिमाइज़ हुआ, तो ऑप्टिमाइज़ के लिए अपने सॉफ्टवेयर्स यूज़ किए। तो अपन इस चीज़ से ये नहीं कह सकते कि डिज़ाइनिंग के लिए अपन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। गेटिंग? डिज़ाइनिंग के लिए अपन सॉफ्टवेयर्स यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन आज के टाइम में मिथ अलग बन चुकी है कि हाँ डिज़ाइनिंग के लिए अपन सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। लाइक अगर मुझे कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करना था, हम सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इस चीज़ के अगर डीप में जाओ, कोर में, तो सीधे सीधे एक वर्ड में आपको एंड में जाके ये चीज़ मिलेगी, प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करते हो, चाहे आप सॉलिडवर्क्स में सॉल्व करो उस प्रॉब्लम को, कैटिया में सॉल्व करो, क्रियो में करो, एनएक्स करो, फ्यूजन करो, इन्वेंटर करो, डजेंट मैटर, आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने टेक्निक आनी चाहिए। इसीलिए बहुत सारे कैड सॉफ्टवेयर्स हैं, CAE सॉफ्टवेयर्स हैं। आपने सॉलिडवर्क्स भी पढ़ा, सॉलिडवर्क्स में आपने मॉडलिंग की, आपने जो पार्ट बनाया था वो बहुत पहले बन चुका है, आपने क्या किया, उसको रीडिज़ाइन किया और किया गया, कुछ नहीं किया आपने। प्रॉब्लम अगर मैं बताऊं कि मुझे सोने में दिक्कत आती है, अब मुझे कोई डिज़ाइन करके बताओ क्या चीज़, तो सोने में दिक्कत आती है, तो इंजीनियर्स ने क्या किया, पिलो डिज़ाइन किए, बेड डिज़ाइंस किए, कुछ ऐसे रूम्स डिज़ाइन किए, कुछ ऐसे स्पेशल बेड्स डिज़ाइन किए जिसमें मतलब सोने में प्रॉब्लम्स नहीं आती। तो वो होती है टेक्निक्स। उनके लिए, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने पहले थ्योरेटिकल अप्रोच लगाई होगी, शायद न्यूमेरिकल अप्रोच लगाई होगी, शायद सीधे सॉफ्टवेयर पे गए होंगे। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें काम करती है। अब किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. कुणाल, आर्यांश, अभिषेक, बादल, सभी से कह रहा हूं मैं। यस सर। तो ऐसी चीज़ें काम करती हैं। अपन अगर आपने इंजीनियरिंग में बुक्स पढ़ी हो, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हीट एंड मास ट्रांसफर, तो उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो कहाँ से आते हैं, वो किसने बनाए? कभी अगर इस चीज़ के बारे में सोचो तो वो कहाँ से आते हैं, किसने बनाए? वो थ्योरेटिकल अप्रोच होती है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो किसी ने मन से नहीं बनाए। इंजीनियर्स ने पहले ट्राई किया था, कोई फिजिसिस्ट थे, अच्छे साइंटिस्ट थे, इंजीनियर्स थे, उन्होंने प्रॉब्लम को थ्योरेटिकली सॉल्व आउट किए थे। लेकिन थ्योरेटिकल सॉल्व करने में यही दिक्कत आती है कि वो आइडियल कंडीशन कंसिडर करता है। ये लोग आप भी जानते हो, क्योंकि जो बुक्स में क्वेश्चंस होते हैं वो आइडियल कंडीशन पे होते हैं, उनको अपन प्रैक्टिकल लाइफ में रिलेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो सॉफ्टवेयर पे जो काम होता है वो एक स्टेप आगे होता है थ्योरेटिकल से, और एक स्टेप आगे होता है एक्सपेरिमेंट से। हालांकि सॉफ्टवेयर भी एक्चुअल रिजल्ट्स नहीं देते, लेकिन वो उन स्टेप से आगे होते हैं। अगर मैं एक क्वेश्चन थ्योरेटिकली सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरे क्या क्या नुकसान है? एरर आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा है, टाइम कंज्यूम होगा, क्या पता मैं सही मेथड यूज़ कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। उस चीज़ को मैं कह नहीं सकता कि वो सॉल्यूशन जो आएगा थ्योरेटिकली वो सही होगा या नहीं होगा। समझ रहे हो? लेकिन अगर यही चीज़ अगर मैं सॉफ्टवेयर पे टेस्ट करता हूँ तो हाँ मैं उस चीज़ को विजुअलाइज कर पाऊँगा कि हाँ मेरी ये चीज़ सही है, मुझे पर्टिकुलर रिजल्ट्स मिलेंगे, उन रिजल्ट्स को मैं ऑप्टिमाइज भी कर सकता हूँ, मेरा टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होगा और एरर फ्री भी होंगे। तो इसीलिए अपन कैड, कैम और CAE सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर। और अगर मैं मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो इंजीनियरिंग के अंदर मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के अंदर एक वाइट कॉलर जॉब होती है, वो मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट ही होती है, जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, बस प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे काम करना पड़ता है, रेदर देन प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग या फिर मैन्युफैक्चरिंग या फिर सेल्स एंड मार्केटिंग। आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते। अगर आपको एफर्ट्स लगाने हैं तो आपको 4 साल में एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, 4 साल के बाद आपको एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा पे आउट वाली जो जॉब है वो भी मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर की होती है। इसमें भी सब कैटेगरीज आती है। कैड डिज़ाइनर अलग होता है, ड्राफ्टमैन अलग होता है, डिज़ाइन इंजीनियर अलग होता है, GD&T डिज़ाइनर अलग होता है, प्रोडक्ट डिज़ाइनर अलग होता है
रेंडर डिज़ाइनर अलग होता है, विजुलाइजेशन जो विजुलाइज पर काम करता है, एनिमेशन जो मैकेनिकल के जो एनिमेशंस होते हैं कैड एनिमेशन पे, उनका डिज़ाइनर अलग होता है। उन कैड मॉडल्स को, उन डिज़ाइन को ऑप्टिमाइज करने के लिए उनका डिज़ाइनर भी अलग होता है। CAE इंजीनियर जिसे कहते हैं अपन, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, वो इंजीनियर अलग होता है। उसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब्स मतलब प्रोवाइड करवाते हैं कंपनीज, MNCs, बड़ी बड़ी MNCs जो होती है, जो CAE इंजीनियर्स को हायर करती है, वो एक्सपीरियंस मांगती है। वो सबसे पहले वही चीज़ देखती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कितनी अच्छी है। आपको कोई सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं पूछेगा कि इस सॉफ्टवेयर में इससे क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर में इससे क्या होता है, या फिर ये सॉफ्टवेयर कब बना गया था, या फिर इस सॉफ्टवेयर की क्या कैपेबिलिटी है, या फिर हम ये सॉफ्टवेयर क्यों यूज़ करते हैं, ये आपसे कोई नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो चीज़ें सबको पता है। अगर आप वहाँ तक पहुँच रहे हो, CAE तक, CAE का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ पता होगी, तो वो चीज़ आपसे कोई पूछेगा भी नहीं। सॉफ्टवेयर का नॉलेज होगा आपको, चाहे अगर कोई कंपनी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है रेदर देन कमर्शियल लाइक एंसर्स, स्टार CCM, ओपन फॉर्म, जितने भी CAE के जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एडवांस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनके अलावा कंपनी का खुद का भी एक अलग सॉफ्टवेयर होता है कि हम अपने प्राइवेसी के लिए हम अलग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उनकी ये रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपको सॉफ्टवेयर आना ज़रूरी है, उनको ये रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपने पहले काम किया है नहीं किया है प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे। ऑन द बिहाफ ऑफ दैट आपको अच्छा पैकेज मिलता है, वरना आपको कोई इंजीनियरिंग के बाद 2 या 3 साल बाद, 4 साल बाद, अगर 1 साल बाद भी बात करो, अगर आप इंजीनियरिंग के सीधे फाइनल ईयर के बाद अगर आप एंसर्स में या फिर कुछ डिज़ाइनिंग कंपनी में जाते हो, तो सबसे पहली जॉब आपकी होती है ड्राफ्ट इंजीनियर की, जिसमें आपको सबसे कम पेड वाली जॉब है। उसमें आपको ऑटोकैड पे काम करना पड़ता है, ड्राफ्टिंग शीट्स वही आपको करनी है। एटलीस्ट 6 to 8 मंथ्स आपको ये करना पड़ता है। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस होता है, आप अच्छी पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, लाइक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो सॉलिडवर्क्स या फिर जो क्रियो है, उनके ऊपर आप उन जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो। हार्डली वो आपको 20, 22, 24 इतना पे करेगी, जो छोटी MNCs है। जैसे जैसे आपका डिज़ाइन इंजीनियरिंग में एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपकी ग्रोथ होगी, आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि डिज़ाइन इंजीनियरिंग में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम यही है कि आपकी इनिशियल ग्रोथ ज़ीरो है, ज़ीरो कंसीडर करके चलो इनिशियल ग्रोथ को, लेकिन जो अपकमिंग ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और बहुत ज़्यादा ग्रोथ। कैड डिज़ाइनिंग आपने कर लिया, आपने 2 साल डिज़ाइन इंजीनियर की पोस्ट पे जॉब किया, उसके बाद आप डायरेक्ट CAE इंजीनियर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। लेकिन अगर आपकी CAE इंजीनियर, अगर आप सीधे ही CAE इंजीनियरिंग में जाना चाहते हो, तो आपका टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह बैचलर्स में बहुत अच्छे लेवल पर करे होने चाहिए, आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए जो आने वाले, जो एक एक्सपीरियंस पर्सन को पता होनी चाहिए, वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सच में सॉफ्टवेयर्स कितना इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो आपको चीज़ें एकदम विजुअलाइज करनी आनी चाहिए। तब आप इजीली फाइनल ईयर के बाद आप CAE कंपनी में अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कर लिया, आगे वाले को लगा कि आप सच में एलिजिबल हो इस चीज़ के लिए, आपके पास नॉलेज है, आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं, आपको चीज़ें पता है, तो आपको अच्छा पैकेज लेने से कोई नहीं रोकेगा। और जो CAE इंजीनियर का होता है वो इनिशियली पैकेज होता है 40 to 45। आप इनिशियल स्टेज पे जाते हो, एक बेसिक, जहाँ पे एक डिज़ाइन इंजीनियर की जो कैड डिज़ाइनर होता है उसकी होती है 12,000 या फिर 15,000, वहाँ पे एक CAE इंजीनियर की होती है 50 या फिर 45। जैसे जैसे आप ग्रोथ करते हो, जैसे जैसे आप CAE के अंदर जाते हो, आपके पैकेज अनबिलीवेबल होते हैं। अब रेदर देन इंडिया, आउट ऑफ द इंडिया भी आप अप्लाई करो तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है, CAE का एक्सपीरियंस। हाँ सात्विक सर, CAE इंजीनियरिंग में ये सॉफ्टवेयर कौन से आते हैं वैसे? हाँ, मैं उसके ऊपर भी आऊँगा, पहले मैं इसके ऊपर बात कर लेता हूँ, इसके स्कोप क्या क्या है। ठीक है, आप बाहर भी इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में, एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में और इवन एरोस्पेस इंजीनियरिंग में भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड जॉब भी CAE इंजीनियर की ही होती है। CAE इंजीनियर में भी बहुत सब कैटेगरीज आती है, CFD इंजीनियर, FEA इंजीनियर, FEV इंजीनियर, मैशिंग इंजीनियर अलग, जो पोस्ट प्रोसेसिंग होता है उसका अलग इंजीनियर, जो एंसर्स की ज्योमेट्रीज बनाता है, जो मतलब जो CAE की जो ज्योमेट्रीज बनाता है उनका मतलब अलग इंजीनियर, इन सबके अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। तो उन सबको अच्छी सैलरी पे आउट मिलती है, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइनिंग पे काम कर रखा है, उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि प्रॉब्लम को कैसे विजुलाइज किया जाता है, मार्केट को कैसे समझा जाता है, लोगों को नीड क्या है आज के टाइम में,
उन नीड को समझ के कैसे प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है। तो इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। बात करूँ मैं CAE की, क्योंकि ये इंजीनियर जो ये मतलब अभी डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है वो कैड डिज़ाइनिंग का नहीं है, वो रवि सर ने लिया था कैड डिज़ाइनिंग के ऊपर। मैं CAE इंजीनियरिंग के ऊपर बात करूँगा कम्प्लीटली। CAE क्या है, कैसा इसमें स्कोप है, जो कि मैंने बता दिया, कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, कैसे अपन इनिशियली CAE में जा सकते हैं, और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके लिए चीज़ें। CAE की बात करूँ तो मैं होता कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर एडेड एडवांस इंजीनियरिंग। ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें अपन इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। नॉट ओनली इंजीनियरिंग, फिजिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। फिजिकल प्रॉब्लम्स की बात करूँ तो अगर मैं कैसे, एक बुलेट चल रही है, ठीक है, बुलेट एक 100 की स्पीड से चल रही है, तो उस बुलेट के ऊपर क्या क्या फिजिकल कंडीशंस लगेगी एनवायरनमेंट से, जो अपना एनवायरनमेंट है वो उसके ऊपर क्या क्या कंडीशन, बाउंड्री कंडीशंस लगेगा, लाइक फ्रिक्शन, हीट जनरेशन, ड्रैग लिफ्ट, बाउंड्री लेयर फिनोमिना, जो उसका अगर मैं बात करूँ तो उसका इम्पैक्ट एनालिसिस, उसका इम्पैक्ट कैसा होगा, फ्लो एनालिसिस कैसा उसका एयर में। तो वो सारी चीज़ें फिजिकल प्रॉब्लम्स में आती है, उसको अपन सॉल्व नहीं कर सकते, उसको अपन थ्योरेटिकली भी सॉल्व नहीं कर सकते और एक्सपेरिमेंटल भी सॉल्व नहीं कर सकते कुछ हद तक। वैसे विंड टनल्स होती हैं इन चीज़ को सॉल्व करने के लिए, बट एक्यूरेट अपन नहीं कर सकते। जैसे कि इस प्रॉब्लम्स को लाइक अगर मुझे गाड़ी के विंग्स का एनालिसिस करना है तो हाँ, विंग्स को मैं गाड़ी में से रिमूव कर सकता हूँ, उसको विंड टनल में डाल के उसका सिमुलेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरी ट्रेन चल रही है 100 की स्पीड से, उसमें सडन ब्रेक लग गया, उसमें फ्रिक्शन कितना जनरेट हो रहा है, हीट जनरेट कितनी हो रही है, वो चीज़ें मैं मेजर नहीं कर पाऊँगा प्रैक्टिकली। ना ही मैं थ्योरेटिकल पे पेन पेपर लेके नहीं बैठ सकता मैं ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर एरोप्लेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए पर्टिकुलरली ऐसे एल्गोरिथम्स डिज़ाइन किए गए थे 1970s में। हेलो, Yes, sir. बोर तो नहीं हो रहे ना? No, sir, no. हाँ, तो 1970 में जॉन स्वानसन जो US के थे, उन्होंने ऐसे एल्गोरिथम डिज़ाइन किए थे कि हाँ, मैं ऐसे एल्गोरिथम डिज़ाइन करूँगा कि वो एल्गोरिथम बाय द हेल्प ऑफ कंप्यूटर से चलेंगे और वो कंप्यूटर की पावर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करेगी। तो उन्होंने उनका मजाक उड़ाया। जो जनता थी या फिर जो जिस कंपनी में वो काम करते थे, उन्होंने उस कंपनी ने उनको बाहर निकाल दिया कि ऐसी कोई चीज़ पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स जो एक ह्यूमन सॉल्व नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर की एल्गो कैसे सॉल्व करेगी? दिस इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन उनको उसके ऊपर विश्वास था, तो उन्होंने क्या, एक छोटी एल्गोरिथम बनाई, एक छोटी इक्वेशन डाली, उन्होंने एक ऐसा कोड जनरेट किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया। कुछ नहीं किया उन्होंने, जैसे C++ की लाइब्रेरीज होती है उसके अंदर जैसे प्री अपने ये अपने होते हैं प्री फंक्शंस होते हैं, उन्होंने एक फंक्शंस डाला। उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन को कोडिंग में लिख दिया। लाइक अगर मैं कहूँ F बराबर ma, ठीक है, F बराबर ma, उन्होंने क्या किया, उस इक्वेशन को कोडिंग में लिख दिया, कोडिंग की लैंग्वेज में, और उन्होंने उसका एक ऐप बना दिया या फिर कुछ बना दिया, उन्होंने सेटअप वेटअप बना दिया। उसके ऊपर उन्होंने बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व की। ये उनका डिज़ाइन था, एक तरह का एक डिज़ाइन, एक आइडिया था। उस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया इसके ऊपर एक छोटे से F बराबर ma से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, चीज़ें वर्क हो रही है। उन्होंने कहा कि ठीक है, सॉफ्टवेयर में डालने में कुछ दिक्कत आ रही है। इनिशियली उन्होंने चीज़ें वर्क करनी स्टार्ट कर ली थी कि लाइक हाँ, इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते, लेकिन उनको आइडिया नहीं था कि इतनी बड़ी भी प्रॉब्लम सॉल्व आउट होगी। उन्होंने फिर डेवलपर्स लगाए, उसके ऊपर काम किया और बहुत अच्छे लेवल पे काम किया। तो उन्होंने फिर मॉड्यूल्स बनाए कि लाइक स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाए। तो स्ट्रक्चर की जितनी भी इक्वेशंस है, जितने भी मेथड्स वगैरह हैं, जो मेथड्स अपन स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए थ्योरेटिकली अप्रोच लगाते हैं, लाइक स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, σ/a, स्ट्रेन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, dl/, जैसे चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, ऐसे अपन जैसे जितनी भी चीज़ें अपन सॉल्व आउट करते हैं, उन्होंने उस चीज़ को कंप्यूटर में डाला, एल्गोरिथम के फॉर्म में, कोड्स के फॉर्म में, जितनी भी अपन चीज़ें पढ़ते हैं। क्योंकि ह्यूमन तो उस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाएगा, टाइम लगेगा उसको, लेकिन कंप्यूटर उस चीज़ को सॉल्व कर लेगा। उसके एल्गोरिथम से उसके पास कंप्यूटेशनल पावर है। तो उन्होंने ऐसे कोड जनरेट्स किए कि हाँ, उसको कैसे डेवलप किया। फिर धीरे धीरे चीज़ें इम्प्रूवमेंट हुई, स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर थर्मल की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर फ्लूइड की प्रॉब्लम सॉल्व की, फिर एरोस्पेस की प्रॉब्लम सॉल्व की। ऐसे करके पूरा वर्ल्ड वाइड इस चीज़ का कॉन्सेप्ट आया, जिसे अपन सिमुलेशन का नाम देते हैं। और जो थ्योरेटिकली अपन अप्रोच करते हैं, लाइक थ्योरेटिकली अगर मैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, उसे एनालाइज का फॉर्म, उसे एनालाइज की टर्म में अपन उसको एनालाइज कहते हैं, मतलब एनालाइज अप्रोच कहते हैं उसको। लेकिन जो कंप्यूटर पे अपन करते हैं उसको सिमुलेशन अप्रोच कहते हैं।
अगर आपने मेथड्स वगैरह पढ़े हैं थ्योरेटिकल अप्रोच के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन तो अपन सभी पढ़ते हैं, फ्लूइड की सारी प्रॉब्लम्स पढ़ते हैं, थर्मल भी पढ़ते हैं, लेकिन अगर पार्शियल इक्वेशन इक्वेशंस को अपन सॉल्व आउट करना चाहते हैं तो अपने पास कुछ मेथड्स होते हैं, कन्वेंशनल मेथड्स लाइक यूलर्स इक्वेशंस, यूलर्स मेथड हो गया, या फिर मॉडिफाइड यूलर्स मेथड हो गया, एक रुंगा कुत्ता नाम का कोई मेथड है वो भी हो गया। ये सारे इटरेशन मेथड्स होते हैं। अपन क्या करते हैं, बार बार इटरेट करते हैं एक प्रॉब्लम को, बार बार इटरेट करते हैं, फाइनल आउटपुट पे पहुंचते हैं। तो सॉफ्टवेयर भी इन्हीं चीज़ों पे काम करता है। जो CAE के मेथड्स होते हैं वो इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हैं, लेकिन ह्यूमन की लिमिट क्या होती है, वो इरिटेट हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बार बार इटरेशन करने से, उसमें गलतियाँ हो जाती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 200 1500 इटरेशन सॉल्व कर लेगा। ये भी बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इटरेशन 15 इटरेशन। लेकिन अच्छा कोई मैथमेटिशियन हो तो वो 100 200 ज़्यादा से ज़्यादा 1000 इटरेशन। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा है जो अनलिमिटेड, जिसके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, लिमिटलेस, वो सारी जो लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ है उनको सॉल्व आउट कर सकता है, डिज़ाइन को ब्रेक कर सकता है, बाउंड्रीज को ब्रेक कर सकता है, और इंजीनियर्स को मतलब ऐसी पावर देता है कि मतलब कि हाँ, आप इस कितनी भी मतलब जो भी हाईटेक प्रॉब्लम्स हो आप उनको इजीली उसके अंदर सॉल्व आउट कर सकते हैं, जितने भी आप वेरिएबल्स क्रिएट कर पाओ। जनरली अपने वेरिएबल्स कितने होते हैं, एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, अपन बुक्स में पढ़ते हैं एक वेरिएबल अननोन है, दो वेरिएबल अननोन है। लेकिन अगर क्या हो मेरे पास लिमिटलेस वेरिएबल हो, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पे स्टक नहीं हो सकता। तो वहाँ पे ऐसे CAE सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो सबसे पहले एंसेस आई थी। एंसेस एक प्रोडक्ट भी है और एंसेस एक कंपनी भी है। जिस बंदे ने एंसेस का इन्वेंट किया था उसने अपनी कंपनी का नाम भी एंसेस रखा और अपना प्रोडक्ट का नाम भी एंसेस रखा। उसके बाद जितने भी कैड सॉफ्टवेयर्स थे या फिर जो थर्ड पार्टी जितने भी सॉफ्टवेयर थे, उन्होंने अपने सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही, कैड मॉडलिंग सॉफ्टवेयर्स के अंदर ही फिर जो ऐसी प्रॉब्लम्स को, जैसे CAE का पार्ट होता है कंप्यूटेशनल एडवांस इंजीनियरिंग, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने अलग मॉड्यूल्स बनाए। जो काम एंसेस करता है वो कि वही एल्गो फिर उन्होंने एज एस बना के उनके अंदर मतलब डालनी स्टार्ट की कि हाँ आप इसमें क्या मॉडलिंग भी कर सकते हो, आप इसके अंदर सिमुलेशन भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। तो इस चीज़ के लिए वो चीज़ वहाँ पे आई थी। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो, कोई क्वेश्चन उठ रहा है तो पूछो। तो मतलब जो आपने बताया उस हिसाब से सबसे पहले कैड इंजीनियर बनेंगे, फिर उसके बाद में CAE इंजीनियर बनेंगे। प्रोसेस तो यही है, क्योंकि जो CAE इंजीनियर की पोस्ट होती है वो आपको ऐसे ही हायर नहीं करती। आपके पास कैड इंजीनियरिंग का या फिर डिज़ाइन इंजीनियर का आपके पास थप्पा होना चाहिए। अगर आपके पास रिटर्न में भी नहीं है कि हाँ मुझे डिज़ाइनिंग आती है अच्छी, ठीक है, मैं नहीं कह रहा, मेरे प्रोजेक्ट्स कह रहे हैं और मेरा काम कह रहा है और मेरा नॉलेज कह रहा है कि मुझे डिज़ाइनिंग आती है, मैं नहीं कह रहा, ठीक है। अगर आप आगे वालों को ये चीज़ प्रूफ कर लो कि हाँ मुझे डिज़ाइनिंग आती है लेकिन मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप CAE में भी जो क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं, जो CAE की जो उनको चाहिए, आप उनका मतलब उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, तो वेल एंड गुड, आप सीधे CAE इंजीनियर की पोस्ट पे जंप कर सकते हो। और आप आफ्टर फाइनल ईयर के बाद विद इन 6 मंथ या फिर 7 मंथ्स में आप इजीली जॉब ले सकते हो। बोलो। हमारा कैड अच्छा हो इसके लिए आपने बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हमारी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स कैड अच्छा करने के लिए पहले रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी इमेजिनेशन अच्छी होनी चाहिए, चीज़ों को कितना इमेजिन कर पाते हो, रेदर देन जो कन्वेंशनल ड्राइंग्स है। लाइक मेरे पास एक ड्राइंग दे दी, डायमेंशन दे दी, अब मुझे उस डायमेंशन को एज इट इज़ देख के उसके अंदर बनाना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे सामने कोई प्रोडक्ट पड़ा है, उसको देख के मैं उसकी बेस डायमेंशन निकाल के मेरे दिमाग में वो चीज़ें बननी चाहिए। जो चीज़ें मैं सॉफ्टवेयर पर करता हूँ वो चीज़ें मेरे दिमाग में बननी स्टार्ट हो जानी चाहिए। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, जब आप सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हो तो आपको कन्वेंशनल मेथड्स यूज़ करने आने चाहिए। लाइक GD&T अप्लाई करने आने चाहिए, ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस, कि अगर मैं पार्ट बना रहा हूँ तो इसके अंदर टॉलरेंस कितनी रखनी है, इसके अंदर फिट कितनी रखनी है, इसकी थ्रेडिंग की साइज़ क्या है, इसके अंदर कौन सा नट बोल्ट आएगा, इसके अंदर कौन सी बियरिंग लगेगी, या फिर इस प्रोडक्ट के लिए कौन सी बियरिंग यूज़ करनी, इसके लिए कौन सा मटेरियल यूज़ करना है मुझे। ये मैं एज ए मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं दूसरे सेगमेंट में बात करूँ तो ये चीज़ें रॉन्ग है, अगर तीसरे सेगमेंट में बात करूँ तो ये चीज़ें रॉन्ग है, क्योंकि डिज़ाइन एक पर्टिकुलर फील्ड में नहीं है। मैकेनिकल डिज़ाइन अलग है, प्रोडक्ट डिज़ाइन अलग है, सिविल डिज़ाइन अलग है, आर्किटेक्ट डिज़ाइन अलग है, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है। लेकिन अगर
मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ ना, तो रेदर देन अपीरियंस अपने को टेक्निकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक पे फोकस करना बहुत ज़रूरी आना चाहिए। लाइक अगर मैं कोई पार्ट भी बना रहा हूँ ना, तो मुझे देख के पता चलना चाहिए कि यार इसका डायमीटर कितना होना चाहिए। वो मुझे कैसे पता चलेगा? जब मुझे बियरिंग्स की नॉलेज होगी कि कौन कौन सी बियरिंग्स मिलती है। मुझे पता है कि ये पार्ट मैं कहाँ पे लगाऊंगा। अगर ये पार्ट मैं डिफरेंशियल में लगा रहा हूँ, अगर ये पार्ट मैं रियर ड्राइव में लगा रहा हूँ, तो वहाँ पे कौन सी बियरिंग यूज़ होगी, तो मुझे पता होनी चाहिए। उस बियरिंग के हिसाब से मैं उसके ऊपर है ना उसका पार्ट डिज़ाइन करूँगा मैं। गॉट इट? सर और सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है, आपको सॉफ्टवेयर अच्छे आने चाहिए। ये तो बेसिक नीड ही है। लोगों को लगता है कि डिज़ाइनिंग के लिए आपको सॉफ्टवेयर अच्छे आने चाहिए, नहीं, बेसिक नीड यही है कि सॉफ्टवेयर अच्छे आने चाहिए। अच्छे लेवल पे सॉफ्टवेयर आने चाहिए, आपको सारे फीचर्स यूज़ करना आने चाहिए। अगर आपको सारे फीचर्स यूज़ करना है तभी तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। और कोई क्वेश्चन? आर्यांश, कुणाल, बादल, अक्षत, पीयूष। सर पीएसयूज में भी पहले कैड फिर सीए करना पड़ता है क्या? पीएसयूज में भी इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, पहले कैड डिजाइनिंग में रखते हैं, फिर बाद में सीए में रखते हैं। डिपेंड करता है आप कौन से पीयूसीज में जा रहे हो। ये मतलब डिपेंड करता है, डिफरेंट पीयूसीज पे डिपेंड करता है ये चीज़ें। अगर वहाँ पे वो चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे कंपनी इस चीज़ का क्राइटेरिया आपको खुद ही बता देगी जिस पीएसयूज में आप जा रहे हो। और कोई क्वेश्चंस? अभी कौन आया था? मोहम्मद आमिर। हेलो। Yes. Hello. हाँ आमिर, Yes, sir. अपना इंट्रोडक्शन दीजिए एक बार, और उसमें ये चीज़ ऐड कीजिए, आपका नाम, और आप फ्यूचर में क्या Yes. करो, आप फ्यूचर में क्या करोगे, फ्यूचर इन द सेंस आफ्टर फाइनल ईयर। My name is Mohammad Amir Popar. ओके I'm second year student. ओके I make in future a successful engineer, mechanical engineer. ओके। तो मतलब ये मान के चलता हूँ कि जिन लोगों ने भी अभी ज्वाइन किया है, 14 पीपल्स हैं, वो सारे मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मैकेनिकल डिज़ाइनिंग में कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहता है, आइदर इन कैड डिज़ाइनिंग, आइदर इन सीए इंजीनियरिंग, या फिर किसी भी फील्ड में मैकेनिकल डिज़ाइन से मतलब रिलेटेड चीज़ें करना चाहते हैं, मैं मान के चलूँ। Yes, sir. ओके। यस तो कैड डिज़ाइनिंग आपने सीखी, बेसिक मॉडलिंग सीखी आपने। मैं सीए सॉफ्टवेयर पे आपको काम करना बताऊंगा। और मुझे किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी जस्ट कि सर सीए सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, एडवांस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना? तो कुणाल आपने पूछा? यस सर, सर मैंने पूछा था। ओके, सात्विक आपने पूछा था ना? सर एक क्वेश्चन और है कि अगर सात्विक आपके बैकग्राउंड में कुछ नॉइज क्रिएट हो रही है, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप हाँ सात्विक आप कंटिन्यू कीजिए प्लीज़। हेलो हेलो। इज इट क्लियर? हेलो सात्विक। हेलो हाँ
सर मैं ऐसे पूछ रहा था कि जो आपने जो सॉफ्टवेयर बताया तो कैड इनिशियली सबके लिए सीखना जरूरी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये डिपेंड करता है कि अगर आपको कैड डिज़ाइनिंग के अंदर अगर आपको कैड डिज़ाइनिंग के अंदर जाना है तो आपको सीखनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलरली सीए इंजीनियरिंग में जाना है तो एंसर्स हैज़ कैपेबिलिटीज़ कि उसके पास ज्योमेट्री मॉडलर है। आपको बेसिक ज्योमेट्री क्रिएशन आना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है ज्योमेट्री क्रिएट करना, आपको सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स पे काम करना पसंद है, ओके तो आप बाय भी कर सकते हो कैड मॉडल्स, या फिर जो मतलब इनबिल्ट जो वेबसाइट्स है वहाँ पे कैड मॉडल्स मिलते भी हैं, या फिर आप किसी को भी हायर करके आप कैड मॉडल बनवा सकते हो। ओके सर ओके। हेलो ऋत्विक, हेलो। तो ठीक है, मुझे ना किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर सीआई के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है, तो मैं इसको बताता हूँ आपको। सीआई के आज के टाइम में वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं। इनको अगर कैटेगरी में मैं डिवाइड करूँ, कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कुछ नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं कि जो पेड आउट सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको बड़ी बड़ी एमएनसीज यूज़ करती है, वो उनको पे करती है। अगर मेरी कोई कंपनी है, अगर मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ या फिर अपने प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे उस चीज़ को अगर मैं उस प्रोडक्ट को कमर्शलाइज कर रहा हूँ तो मुझे उस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा। तो कुछ कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं, कुछ नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स भी होते हैं। लाइक अपने स्टूडेंट्स के लिए अपन अगर कोई प्रोडक्ट वगैरह बना रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हैं, तो अपन को कमर्शलाइज नहीं कर रहे हैं। तो मुझे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए, या फिर अगर मैं फाइनल ईयर में हूँ, थर्ड ईयर में हूँ, तो मुझे प्रोजेक्ट या उसको प्रोडक्ट को जस्टिफाई करने के लिए या फिर उसका सीआई सिमुलेशन करने के लिए मुझे को लाइसेंस वाइसेंस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उसको कमर्शलाइज नहीं कर रहा, ठीक है। तो दो कैटेगरी में, कमर्शलाइज सॉफ्टवेयर और नॉन कमर्शलाइज सॉफ्टवेयर। कमर्शलाइज सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो जैसे कि अपने एंसस एक प्रोडक्ट भी है और एंसस एक कंपनी भी है। एंसस एक कंपनी है जो कि एंसस नाम का एक प्रोडक्ट प्रोवाइड करवाती है। यूएस की कंपनी है जिसमें कैपेबिलिटीज़ है कि वो सीए की जो एडवांस इंजीनियरिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व आउट करने की कैपेबिलिटी रखती है। उसके बाद आता है स्टार सीसीएम प्लस। स्टार सीसीएम प्लस सीमेंस का है। उसके पास भी अलग कैपेबिलिटीज़ है। लाइक वो फ्लूइड की प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाता है। एंसस के पास कैपेबिलिटी है कि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कर लेता है। लाइक उसको स्ट्रक्चर की दे दो तो कर लेगा, थर्मल की दे दो तो कर लेगा, वो आईसीएम सीएफडी की अगर फ्लूएंट की प्रॉब्लम हो तो वो कर लेगा, मल्टी फिजिक्स की प्रॉब्लम हो तो कर लेगा, नॉन लीनियर जितनी भी प्रॉब्लम्स है, ट्रांजिएंट मॉडल, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर लेगा। लेकिन स्टार सीसी में उसके पास एक ही कैपेबिलिटी है। क्या कैपेबिलिटी है कि वो फ्लूइड की प्रॉब्लम्स को अच्छे सॉल्व कर लेगा। अब फ्लूइड में कुछ भी कंसीडर हो सकता है, एरोडायनेमिक कंसीडर हो सकता है, हाइड्रोडायनेमिक कंसीडर हो सकता है, या फिर इंटरनल फ्लूइड फ्लो है वो भी कंसीडर हो सकता है, सारी चीज़ें कंसीडर हो सकती है। तो स्टार सीसीएम भी एक सॉफ्टवेयर है जो कि सीमेंस का है। वो इस चीज़ को मतलब इस जो एडवांस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो लाइक हाइपरमैश एंड हाइपरवर्क्स, ये भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो मतलब कि जो एल्टॉर्क है, जो मतलब कि उनके पास भी कैपेबिलिटीज़ है कि ये मैशिंग अच्छी कर पाते हैं, या फिर जो मल्टी फिजिक्स जोन है उनकी जो प्रॉब्लम्स है, लाइक फेस चेंजिंग की प्रॉब्लम्स, कि कहीं ना कहीं मेरा फेस चेंज हो रहा है मटेरियल्स में, दो बॉडीज़ के बीच में, तो वहाँ पे उन टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाइपर मैश, या फिर कहीं पे क्रैश सिमुलेशन हो रहा है, अच्छा उस चीज़ को मतलब सॉल्व करने के लिए हाइपर मैश के पास अच्छी कैपेबिलिटीज़ होती है उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा सिमुला एक्स, ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि मतलब कि थर्मल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ किया जाता है। फ्लूइड फ्लो या फिर फ्लो एक्स नाम का सॉफ्टवेयर है, वो भी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। उसके बाद अबेकस भी है, वो भी मतलब सीएफडी की जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो मल्टी फिजिक्स की प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए, ये सारे कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स हैं। एनएक्स नास्ट्रॉन है, एडम्स हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर सीए के सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप अच्छे से सीखो तो जितनी भी मतलब 90 to 95% इंजीनियरिंग की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इन सॉफ्टवेयर्स के अंदर, अगर इन सॉफ्टवेयर को ऐसे कैलकुलेटर कंसीडर करो तो। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स एक तरह से कैलकुलेटर्स हैं, इनके अंदर आपको डेटा फीड करना पड़ता है, अपनी प्रॉब्लम फीड करनी पड़ती है। आप इनके अंदर अपनी प्रॉब्लम फीड करोगे तो वो आपको रिजल्ट्स देंगे। ओके,
उसके बाद अगर मैं बात करूँ नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स, नॉन कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि जो मतलब इजीली हर कोई यूज़ कर पाता है, ठीक है, इसके लिए अपने को पे करना नहीं पड़ता। अब जैसे कि मैं बात करूँ ओपन फॉर्म एक नॉन कमर्शियलाइज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर है कि उसके ऊपर आप वर्क भी कर सकते हो, उसके ऊपर आप कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, नॉन कमर्शियल प्रोजेक्ट भी कर सकते हो। इंडस्ट्रीज़ भी यूज़ करती है ओपन फॉर्म को, लेकिन कोई पे नहीं करता क्योंकि वो नॉन कमर्शलाइज है, उसका लाइसेंस फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अंदर आप मेनली CFD की प्रॉब्लम से वो सॉल्व आउट कर सकते हो। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है, सिर्फ फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम से आप उसके अंदर सॉल्व आउट कर सकते हो मल्टी फिजिक्स की, रैदर देन अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर या फिर थर्मल या फिर एकॉस्टिक या फिर मैं बात करूँ मैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर मेडिकल्स, इन सब की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो कैड डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके पास भी खुद की एक अलग डोमेन होता है इसका सिमुलेशन का, कि हाँ हम कैड डिज़ाइनिंग भी करते हैं और हम सिमुलेशन के ऊपर भी काम करते हैं। तो वो भी नॉन कमर्शलाइज में आते हैं, लेकिन वो नॉन कमर्शलाइज में भी आते हैं और कमर्शलाइज में भी आते हैं। अगर आप लोग अभी सॉलिडवर्क्स चला रहे हो तो आप क्रैक वर्जन चला रहे हो, आप एज ए स्टूडेंट चला सकते हो, लेकिन अगर आप अदर कंट्रीज़ में हो लाइक US, जर्मनी, नीदरलैंड, कनाडा, कहीं पे भी हो तो आप इस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाओगे। आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो या फिर जहाँ पे भी पढ़ रहे हो, आप वो यूनिवर्सिटी इसका लाइसेंस लेके चलती है, आप पर्टिकुलर अपने बिहाफ पे डाउनलोड भी नहीं कर सकते और चला भी नहीं सकते, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछो यहाँ तक। सर अगर मैं स्क्रैप वर्जन में कोई कमर्शियल यूज कर रहा हूँ तो वो अलाउड है क्या? नहीं, कमर्शियली वो चीज़ अलाउड नहीं है, कमर्शियली आप अलाउड नहीं है। अगर आप स्टूडेंट प्रोजेक्ट के बेस पे कर सकते हो तो कर लो, लेकिन अगर आप उस चीज़ को कमर्शियली, जैसे कि आपका खुद का एक यूनिक आइडिया है, ठीक है, यूनिक पेटेंट एक यूनिक आइडिया है आपका, ठीक है, आप उस आइडिया को इवन डिज़ाइन भी नहीं कर पाओगे, उसके ऊपर मॉडल भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने मॉडल कर लिया, अगर आपका वो आइडिया पब्लिश हो गया और उससे अगर रेवेन्यू जनरेट हो गया तो कंपनीज आपके ऊपर केस कर सकती है, आपको उस चीज़ का लाइसेंस खरीदना पड़ेगा फिर उस चीज़ को फिर करने के लिए। आप ऐसे कमर्शियली इस चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन? बादल, पीयूष, अभिषेक, आमिर, साहिल, सात्विक, जो भी हैं सभी यहाँ पे। सर जो भी आपने सारे सॉफ्टवेयर बताए इनमें से सर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे यूजफुल सॉफ्टवेयर कौन सा है? गुड क्वेश्चन। इसका जो बेस होता है सबसे, CAE का जो बेस वो एंसेस होता है, क्योंकि एंसेस वर्ल्ड वाइड यूज़ करता है। और इसमें क्या होती है, एंसेस की कैपेबिलिटी है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं, लगभग सारे मॉड्यूल्स कवर हो जाते हैं। तो अगर आप एक बेस सॉफ्टवेयर अच्छे से सीखते हो तो आपके 90 to 80% चांस हैं कि आप आगे आने वाले जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, आगे जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, उनको हैंडल करने की कैपेबिलिटी आप रखते हो। इवन अगर आप किसी कंपनीज में अप्लाई भी कर रहे हो और वो कंपनी अगर अपना अलग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आप उससे भी फैमिलियर हो सकते हो, क्योंकि आपने पहले एक बेस सॉफ्टवेयर पे काम कर रखा है। लेकिन अगर आप एंसेस के अलावा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पे काम करते हो, लाइक सीमेंस के जो स्टार CCM है या फिर जो हाइपरमैश वगैरह है, एबकस वगैरह, उन पर काम करते हो, तो आप एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे ही काम कर पाओगे। जैसे कि थर्मल की प्रॉब्लम, सिर्फ आप थर्मल की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कहेंगे फ्लूइड की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, स्ट्रक्चर की करनी है, आप नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपने एंसेस अच्छे से कर रखा है, एंसेस में अच्छी कमांड है, कैपेबिलिटी है आपकी अच्छी, तो आप कोई भी प्रॉब्लम पे इजीली मतलब कर सकते हो सॉल्व। सर अगर अपन ने एंसेस कर लिया तो सर फिर अगर अपन कंपनीज में जाते हैं तो अपन को कैड का काम देंगे या फिर डायरेक्ट एंसेस पे काम दे देंगे? देखो, आप CAE इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए अगर किसी कंपनी में अप्लाई करते हो, पहली चीज़ तो वहाँ पे आपको कैड मॉडलिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछेंगे नहीं, क्योंकि CAE इंजीनियरिंग में कैड मॉडलिंग का इतना रोल नहीं आता है इनिशियली। लेकिन अगर आप बड़ी प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, एरोस्पेस या फिर एरोनॉटिक प्रॉब्लम्स पे काम करते हो, बड़े बड़े पार्ट्स पे, असेंबलीज पे काम करते हो, तो 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है, जो कंपनीज जो CAE इंजीनियरिंग पे काम करती है उनके पास कैड मॉडलिंग के लिए अलग इंजीनियर्स होते हैं, या फिर एक कह दो अलग कनेक्शंस होते हैं उनके पास। वो कैड मॉडल वहाँ से बाय करती है या फिर वहाँ से परचेज करती है या फिर वहाँ से
मतलब बनवा के लेके आती है, ऐसा कह दो। कुछ इंजीनियर्स होते हैं जो कि उनका ये काम करते हैं। तो अगर आप सी इंजीनियरिंग की पोस्ट के लिए जा रहे हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कैड डिज़ाइनिंग आनी चाहिए। लेकिन कुछ कंपनीज जो छोटी कंपनीज होती है, छोटी कंपनीज, वहाँ पे ये चीज़ ज़रूर मांगते हैं कि आपको कैड डिज़ाइनिंग भी आनी चाहिए और सी इंजीनियरिंग भी आनी चाहिए। लेकिन अगर आप एक रेप्यूटेड MNCs कंपनीज में जाते हो, MNCs में जो अच्छा पैकेज दे रही है लाइक 50+ या 40+, तो वहाँ पे इस चीज़ पे बात नहीं की जाएगी आपसे। रेदर देन आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर भी बात नहीं की जाएगी। और किसी को कोई डाउट? हेलो? नो सर। कंटिन्यू करें अपन आगे? यस सर। ठीक है। एंसर्स मैं मान के चलता हूँ कि आप सभी ने इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है तो ग्रुप में मैसेज कर देना। कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा कि एंसर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। एंसर्स इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि एंसर्स स्टार्ट कैसे करते हैं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं इंस्टॉल करते हैं, डेस्कटॉप पे आइकन आ जाता है। लेकिन एंसर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका मतलब आइकन नहीं आता बाहर डेस्कटॉप पे। आपको स्टार्ट में जाना पड़ेगा, देन आपको खोलना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं एक बार अपनी विंडो शेयर करता हूँ। मेरी विंडो विजिबल है? यस सर। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट में गया, यहाँ पे मैंने लिखा वर्क बेंच, देन एंटर। एंसर्स की विंडो मेरी रिप्रेजेंट हो रही है सबके सामने? यस सर। ठीक है। तो एंसर्स को अपन ऐसे ओपन करेंगे, स्टार्ट में जाएंगे, वहाँ पे वर्क बेंच लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। कोई डाउट किसी को? नो। ओके। ये अपना एंसर्स का प्रोजेक्ट विंडो होता है, पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट विंडो। यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स चलते हैं, इनके अंदर सब मॉड्यूल्स भी होते हैं। इसे कहते हैं प्रोजेक्ट स्कीमेटिक विंडो या फिर वर्क बेंच कहते हैं इसको, जहाँ पे अपन वर्क करते हैं। ठीक है। ये पर्टिकुलर मॉड्यूल्स होते हैं यहाँ पे जो एंसर्स प्रोवाइड करवाता है। कि मैं जैसे कि अगर मैं एंसर्स में अपनी बात करूँ तो कि मैं एंसर्स हूँ, तो मैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटीज़ रखता हूँ। इन प्रॉब्लम्स को जैसे IC इंजन फ्लुएंट, IC इंजन फोर्टे, मैग्नेटिज्म, मॉडल, रैंडम वाइब्रेशन, रिजिड डायनेमिक्स, एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स, मतलब कि पूरी जो मेरी प्रॉब्लम है वो डायनेमिक कंडीशन के अंदर है, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड फ्लो की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो, लाइक पॉलीफ्लो, फ्लुएंट, CFX, एक्सट्रूजन या फिर ब्लो मॉडलिंग, टर्बो मशीनरी, फ्लूइड फ्लो, टर्बो मशीनरी की जितनी भी प्रॉब्लम्स मैं उसके अंदर सॉल्व कर पाऊंगा। टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन, टोपोलॉजी ऑप्टिमाइजेशन मतलब कि ये भी मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा क्या होता है। थ्रू फ्लो ब्लेड जनरेशन, थर्मो इलेक्ट्रिक, स्टैटिक स्टेट थर्मल, स्टैटिक स्टेडी स्टेट स्ट्रक्चरल, ट्रांजिएंट प्रॉब्लम्स। तो ये सारे बेसिकली मॉड्यूल्स होते हैं कि इन प्रॉब्लम्स को अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई कंपनी है जो कि स्ट्रक्चर पे काम करती है, तो वो क्या करेगी, एंसर्स के अंदर ये इसका और इसका, तो एंसर स्ट्रक्चर स्टैटिक है और ट्रांजिएंट है, इन दो मॉड्यूल्स का लाइसेंस परचेज कर लेगी। ठीक है। अगर वो चाहती है कि नहीं मैं मॉडलिंग भी साथ में करना चाहती हूँ, तो यहाँ पे ज्योमेट्री मॉडलर भी आता है, उसका भी लाइसेंस परचेज कर लेगी। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस पे काम कर रहे हो, इसके हिसाब से इसके लाइसेंस परचेस होते हैं। और इनके लाइसेंस बहुत महंगे होते हैं और उनको हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। ठीक है। इसे कहते हैं अपन टूल बॉक्स, इसे कहते हैं कंपोनेंट सिस्टम। अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलर सेगमेंट्स की, लाइक कौन सी चीज़ क्या करती है, तो सबसे पहले बात करता हूँ स्टैटिक स्ट्रक्चर की। इसको मैंने पकड़ा, ड्रैग किया और जहाँ पे ग्रीन मार्कर बाउंड्री आ रही है यहाँ पे जाके मैंने उसको ड्रॉप किया, तो यहाँ पे मेरा एक स्टैटिक स्ट्रक्चर का पर्टिकुलर मॉड्यूल आ गया मेरे पास पूरा एक, कि सच में यहाँ पे क्या क्या है, लाइक इंजीनियरिंग डेटा, ज्योमेट्री, मॉडल, सेटअप, सॉल्यूशन, रिजल्ट्स। इसके ऊपर मैं डीपली बात करूँगा,
ठीक है। एक आता है यहाँ पे ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर, इसको भी मैंने पकड़ा, यहाँ पे ड्रैग किया। अब दोनों है स्ट्रक्चर, लेकिन एक है स्टैटिक और एक है ट्रांजिएंट। तो आप में से मुझे कोई बताएगा कि स्टैटिक और ट्रांजिएंट में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? चेंजिंग एंड कांस्टेंट। कुछ हद तक इसको थोड़ा अच्छे से एलोबरेट करो, ट्रांजिएंट और स्टैटिक में क्या डिफरेंस होता है? एनीवन? कुछ भी कहीं सुनी होगी ये टर्म स्टैटिक और ट्रांजिएंट? स्टैटिक में फ्लूइड मैकेनिक्स में सुना। बिल्कुल बिल्कुल। इवन अभी आप थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो कुछ चीज़ें ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, आपको पता होनी चाहिए चीज़ें। स्टैटिक और ट्रांजिएंट में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैटिक की अगर मैं बात करूँ, स्टैटिक का मतलब क्या होता है? एक तरह का मतलब रुका हुआ। मतलब इसमें मेरी वो प्रॉब्लम्स वर्क करेगी जिसमें जो मेरी कंडीशंस है, फिजिकल कंडीशंस, फिजिक्स, वो रुकी हुई होगी। अगर मैं टेक्निकल टर्म में बात करूँ तो मेरे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट के ऊपर एक पर्टिकुलर फेज पे कोई फोर्स लग रहा है, तो वो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, अगेन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम वो चीज़ चेंज नहीं होगी, वो फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। चाहे भले अगर मैं 1 सेकेंड बाद बात करूँ तो भी 5 न्यूटन का लगेगा, और 2 सेकेंड तक अगर वो 2 सेकेंड हो गए, 3 सेकेंड हो गए, 4 सेकेंड, तो भी 5 न्यूटन ही लगेगा। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरी जो फोर्स की वैल्यू है या फिर जो फिजिक्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ट्रांजिएंट की बात करूँ तो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो फिजिक्स है वो चेंज होती है। लाइक मैं एक ब्रिज पे चल रहा हूँ, तो ब्रिज पे चल रहा हूँ तो क्या होगा, ब्रिज की जो सरफेसेस होते हैं, या फिर मैं स्टेयर्स पे चल रहा हूँ, मैं पहले स्टेयर पे चढ़ा, अगर मैं स्टेयर पे नहीं चढ़ा, ठीक है, मैं स्टेयर पे नहीं चढ़ा, तो इनिशियली क्या है, स्टेयर्स पे 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने पहला पैर पहले स्टेयर पे लगाया तो क्या होगा, मेरी वेट के कारण न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग नीचे वेट लगेगा और उसके कारण फोर्स जनरेट होगा, तो स्टेयर्स पे एक फोर्स जनरेट होगा। लेकिन फिर मैं जैसे ही दूसरा पैर रखूँगा तो मेरी फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है, और टाइम चल रहा है। उसके बाद मैं अपना दूसरा जो पहला स्टेप है वो अगली वाली स्टेयर पे रखूँगा, तो उस स्टेप पे फोर्स जनरेट हो जाएगा। फिर मैं अपना दूसरा वाला पैर भी उस स्टेयर पे जनरेट रखूँगा तो उस पर भी फोर्स जनरेट हो जाएगा। उससे हुआ क्या, जो पहले वाला स्टेयर था वहाँ पे फोर्स की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन जो आगे वाला स्टेयर था वहाँ पे फोर्स की वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं जैसे जैसे चलता जाऊँगा मेरी फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है, तो वो डायनेमिक कंडीशन में आती है, ठीक है। हेलो, यस सर। अब किसी को कोई डाउट है स्टैटिक में और ट्रांजिएंट में तो अभी मुझे बता दो, क्योंकि एक बेस है ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इससे आपको प्रॉब्लम को एनालाइज करना आना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम स्टैटिक है या मेरी प्रॉब्लम ट्रांजिएंट है, क्योंकि एक प्रॉब्लम, हाँ क्या कह रहे हो सर, एक बार और बता दीजिए ना। देखो, स्टैटिक में क्या होता है, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम जो मेरी फिजिक्स है या फिर जो मेरी बाउंड्रीज है या फिर जो मेरी फोर्स की वैल्यू है, अगर एक टर्म में कहूँ तो वो चीज़ चेंज नहीं होगी। एग्जाम्पल के लिए अगर मैंने एक पंखा लटका रखा है, ठीक है, तो उस पंखे के वेट के कारण दीवार पे जितना भी फोर्स कैलकुलेट होगा x, वो 10 दिन बाद भी उतना ही होगा, 5 दिन बाद भी उतना ही होगा। लेकिन इसमें भी अगर लाइफ टाइम की बात करूँ, लाइफ साइकिल्स की बात, जिसका नाम एक फटीग आता है, फटीग की अगर टर्म सुनी हो तो, जिसमें रिपीटिव साइक्लिक लोड्स लगते हैं, उसके बाद वो चीज़ ब्रेक हो जाती है, तो फटीग एक अलग टर्म आ जाती है। लेकिन अभी मैं अगर कंसीडर करूँ प्रॉब्लम को, तो मेरा जो फोर्स की वैल्यू है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, क्योंकि अगर विथ रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो जाती, फोर्स की वैल्यू आइदर रिपीटिव हो या फिर साइक्लिक हो, अगर किसी भी कंडीशन में चेंज हो जाता तो मेरा पंखा गिर जाता। गिरता या नहीं गिरता? यस। तो इसी हिसाब से इस चीज़ को कंसीडर करते हुए ही जो पंखे के और जो वॉल के बीच में जो हुक है उसको डिज़ाइन किया हुआ है कि जो हुक है वो जो स्टैटिक लोड है उसको बियर कर सके, रैदर देन डायनेमिक लोड को, या फिर जो ट्रांजिएंट लोड है उसको बियर नहीं कर सके। लेकिन जो क्रेन के हुक्स आते हैं या फिर जो ट्रेन की कपलिंग्स आती हैं वो इस हिसाब से डिज़ाइन की जाती है कि वो ट्रांजिएंट लोड भी ले सके, क्योंकि जब कपलिंग होती है, कपलिंग जुड़ी होती है तो ट्रेन एकदम आगे खींचती है,
तो एकदम सडन लोड लगता है उसके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ट्रेन डायनेमिक कंडीशन में होती है लोड की वैल्यू चेंज हो जाती है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है और उसको खींचना पड़ता है। तो जो हुक है वो कंप्रेशन डिस्कशन कंप्रेशन ऐसा होता है, टेंसाइल कंप्रेसिव होता है, तो फोर्स की वैल्यूज चेंज होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें फटीग देखने को मिलता है अपने को, तो वहाँ पे ट्रांजिएंट प्रॉब्लम आती है। अब कोई दिक्कत किसी को? यस सर। तो बेसिकली ये 2 मॉड्यूल होते हैं जिसमें स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है। स्ट्रक्चर के अंदर कुछ भी हो गया, जैसे कि अपनी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, पूरी मैकेनिक्स सारी इसके अंदर सॉल्व आउट होती है दोनों मॉड्यूल्स के अंदर। अब मॉस का कोई भी क्वेश्चन उठा लो आपको, लेकिन क्वेश्चन समझना आना चाहिए। अगर आपने क्वेश्चन ढंग से समझा हो तो आप इसको इसके अंदर सॉल्व कर सकते हो। और जो बुक आंसर दे रही है, लाइक बुक में क्वेश्चन है, वो बुक में क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर है कि लाइक 500 न्यूटन या फिर 500 मेगापास्कल इतना स्ट्रेस जनरेट कर रही है, स्ट्रेस, तो आंसर्स भी आपको उसी प्रॉब्लम का उतना ही स्ट्रेस जनरेट करके देगा, वही डेटा वही रिजल्ट आपको देगा। लेकिन आप जब उस प्रॉब्लम को थियोरेटिकली सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, आप इरिटेट हो जाओगे, ठीक है, आपके एरर आने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन आंसर्स आपको उसी चीज़ को 1 मिनट में सॉल्व करके दे देगा, उसी ही क्वेश्चन को आपको 1 मिनट में सॉल्व करके दे देगा, ठीक है। तो जितनी भी स्ट्रेंथ की प्रॉब्लम्स होती हैं स्ट्रेंथ से रिलेटेड, वो सारी इसमें सॉल्व होती है इन 2 मॉड्यूल्स में। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टेडी स्टेट थर्मल एंड ट्रांजिएंट स्टेट थर्मल, ये 2 मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जिसमें थर्मल की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। थर्मल की कोई भी प्रॉब्लम लाइक कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, जो बेस होते हैं, स्टेडी स्टेट भी होता है, ट्रांजिएंट स्टेट भी होता है। तो जितनी भी आप मॉस इसमें थर्मोडायनेमिक्स में या फिर HMT में पढ़ते हो वो सारी चीज़ें इसमें सॉल्व आउट होती है। लेकिन याद रहे सिर्फ एक फेज़ में। लेकिन अगर मैं इनकी बात करूँ, ये सारी चीज़ें अगर मल्टी फेज़ में चल रही हो तो इसके अंदर ये मॉड्यूल्स काम नहीं आते। मल्टी फेज़ की अगर बात करूँ तो जैसे कि कोई मेरी शिप है या फिर कोई मेरी सबमरीन है, पानी के अंदर चल रही है, अब उस कंपोनेंट के अंदर कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, पानी के कारण, वाटर के कारण, उस जो सरफेस है उसके कारण कितना स्ट्रेस जनरेट होगा, तो वहाँ पे ये चीज़ काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है, इंट्रैक्शन हो रहा है किसका, सॉलिड और फ्लूइड का। तो सॉलिड और फ्लूइड के स्ट्रक्चर के लिए अलग मॉड्यूल्स आते हैं, जिसे अपन CFD फ्लूएंट CFX कहते हैं, या फिर ANSYS AIM, ANSYS डिस्कवरी लाइव, ANSYS स्पेस क्लैम्प, इनके लिए अलग सॉल्वर्स होते हैं, तो वो इस चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक फेज़ की बात करूँ तो वहाँ पे ये चीज़ आएगी। चीज़ें समझ में आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रही? बोलो। आ रही है ना, सो मत जाना बस। एंड अब मैं बात करूँ जैसे कि एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स की। एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स वो डायनेमिक्स या फिर कह दो या फिर वो मॉड्यूल है ANSYS का जिसके अंदर कोर डायनेमिक प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है। कोर डायनेमिक प्रॉब्लम की जैसे कि एक मेरी गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, वो दीवार से टकरा गई, तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, कितने स्ट्रेस जनरेट हो गए, कितने स्ट्रेन जनरेट हो गए, या फिर जो मेरी दीवार है वो टूटेगी या नहीं टूटेगी, या फिर मेरा बम्पर टूटेगा, क्या टूटेगा, 2 गियर मैश हो रहे हैं, या फिर मेरा 2 गियर एक शाफ्ट से कनेक्टेड है, एक शाफ्ट में मैंने मोटर लगा रखी है, ठीक है, उसमें उस गियर को या फिर उस शाफ्ट को मैंने सर्टेन अमाउंट ऑफ RPM दे रखे हैं मैंने, तो जितनी वेलोसिटी वो उससे चलेगा उस वेलोसिटी के कारण जो अगला वाला गियर है वो फ्रिक्शन के कारण या फिर जो मैशिंग के कारण कितना रोटेट करेगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ये चीज़ आप इसमें थ्योरेटिकल में भी सॉल्व करते हो, ठीक है, करते हो नहीं करते हो, लेकिन ये चीज़ अगर आप ANSYS में सॉल्व करते हो वहाँ पे ये वाला मॉड्यूल काम आता है, एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स। या फिर मैंने कोई रबर की बॉल उछाली तो वो कितने साइकिल्स के बाद नीचे गिरेगी, या फिर मैं कोई बॉल लेके ज़मीन पे मारी तो वो कितने जंप लेगी, या फिर मैंने एक बुलेट को मतलब छोड़ा तो वो कितना इम्पैक्ट डालेगी। तो जितने भी आप चीज़ें विजुलाइज, जितनी भी प्रॉब्लम आप विजुलाइज कर, या फिर मैंने पानी की बूंद गिराई इसके अंदर, बर्तन के अंदर, तो वो उसकी प्रोफाइल कैसी होगी, उसकी एक एक बूंद कहाँ पे गिरेगी, ओके, सॉरी, उसकी एक एक बूंद कहाँ पे गिरेगी, ठीक है, उस बूंद के कारण कितना सरफेस एरिया कवर होगा, कितनी सरफेस टेंशन निकलेगी, वो सारी चीज़ें अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्योर डायनेमिक्स की बात हो रही है। जो मेरी पूरी प्रॉब्लम है वो पूरी डायनेमिक कंडीशन के अंदर है, ओके। इलेक्ट्रिक, इसका मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। जितने भी करंट, वोल्टेज,
आईसीज, जो अपने मदरबोर्ड्स, सारी चीज़ें इसके अंदर कैलकुलेट होती हैं। ओके, अगर मैं बात करूँ इन सब मॉड्यूल्स की, यस सर। जैसे कि ब्लो मॉडलिंग, एक्सट्रूजन, CFX, फ्लुएंट एंड पॉलीफ्लो, ये जितने जो 5 मॉड्यूल्स हैं वो फ्लूइड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फ्लूइड के अंदर कुछ भी आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्लूइड क्या है एक, तो मुझे कोई एक जना बताओ फ्लूइड क्या है। एनीवन? फ्लूइड बहुत बेसिक टर्म है यार, ये तो पता होनी चाहिए आपको। flowing substance. हम्म, The substance that flow. That has the ability to flow. थोड़ा सा एक बार क्लियर बोलो एंड थोड़ा सा लाउडली बोलो। So the substance that has the ability to flow. द सब्सटेंस हैज एबिलिटी टू फ्लो। ओके, एक चीज बताओ, फ्लूइड के अंदर इनर्शिया का रोल आता है कि नहीं आता है? Yes sir. कैसे आता है बताओ? Viscosity जो होती है. एकदम सही, विस्कोसिटी। वैसे फ्लूइड बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, लेकिन अपन इसके ऊपर बात नहीं करेंगे वरना पूरा टॉपिक से हट जाएंगे अपन। ठीक है, तो जो ये मॉड्यूल्स होते हैं इतने सारे, ये सारे फ्लूइड की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं इन सब में एक चीज़ में अगर मैं डिफरेंस करने को कहूँ, तो अगर मैं इसको मतलब डिफ्रेंशिएट करूँ तो मतलब मेथड्स। ठीक है, मेथड्स लाइक एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 मेथड होते हैं, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद 10 इक्वेशन होती है। ठीक है, लाइक मेरे पास अगर मैंने सुनी है कंटिन्यूटी इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन और नीवेल-स्टोक्स इक्वेशन, ठीक है, जो अपनी फ्लूइड के लिए जो यूज़ होती है XYZ में, जो कंटिन्यूटी इक्वेशंस है, ये सारी इक्वेशंस। तो जो CFX है वो अलग इक्वेशन यूज़ करेगा, फ्लूइड फ्लो फ्लुएंट है वो कहेगा कि नहीं मैं तो अलग इक्वेशन से यूज़ करूँगा, अलग इक्वेशन से इस मेथड को सॉल्व करूँगा। पॉलीफ्लो है वो कह रहा है कि ठीक है मेरी भी खुद की अलग इक्वेशन में उसको सॉल्व आउट करूँगा, ये भी कह रहा है मैं भी अलग इक्वेशन से। तो इन सब के मेथड्स हैं, इनको एक मेथड्स के रूप में अपन समझ सकते हैं। होती सब में फ्लूइड की प्रॉब्लम से, अगर मैं पाइप फ्लो की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं इसमें भी कर सकता हूँ, 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 लेकिन ये सारे अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे, खुद के मेथड्स यूज़ करेंगे, खुद की इक्वेशंस यूज़ करेंगे। ठीक है, हेलो सर डिफरेंट यूज करते हैं। क्या कह रहे हो? सर अगर सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं तो फिर इनका डिफरेंट वे का पर्पस? डिफरेंट वे का पर्पस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो अलग इक्वेशन से सॉल्व होती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो अलग इक्वेशन से सॉल्व होती है। सॉल्व करने को तो वो भी कर सकती है दोनों इक्वेशंस, लेकिन उससे रिजल्ट्स डिफरेंस आएंगे। अगर मैं रिजल्ट डिफरेंस की बात करूँ तो अगर मेरा CFX रिजल्ट दे रहा है ड्रैग, अगर मैं ड्रैग की बात करूँ, एक प्रॉब्लम है जिसमें मुझे ड्रैग कैलकुलेट करना है, ठीक है, सरफेस के ऊपर, अगर मैं उसको CFX से सॉल्व करूँ तो मेरा ड्रैग आ रहा है 0.5, लेकिन अगर मैं उसको फ्लुएंट से सॉल्व करूँ तो मेरा ड्रैग आ रहा है 0.4। अब देखने में तो ये चीज़ें दोनों बहुत नॉर्मल लग रही है यार, 0.4 0.5 में क्या ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन अगर मैं प्लेन की बात करूँ, तो प्लेन के अंदर ड्रैग का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत ज़्यादा रोल होता है ड्रैग और लिफ्ट का। अगर उसमें एक एंगल ऑफ अटैक 2.8 है तो उससे 2.8 ही ले सकते हैं अपन, 2.7 भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि पता चला कि 2.8 तो बहुत यहाँ से बहुत नज़दीक है, लेकिन अगर उसको मैं एनलार्ज किया या फिर उसको मैग्नीफाई किया तो 2.8 बहुत ज़्यादा हो जाता है। 2.8 अगर वो 1 डिग्री भी नीचे या फिर 1 डिग्री भी ऊपर लॉन्च किया तो कहीं का कहीं लैंड हो जाएगा या फिर कहीं का कहीं टेक ऑफ हो जाएगा। समझे इस चीज़ को? तो इस चीज़ के लिए ये सारे मतलब चीज़ें डेवलप की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी। ओके, इसके बाद आपने आता है थर्मल इलेक्ट्रिक, जिसमें टेम्परेचर और इलेक्ट्रिक दोनों की बात की जाती है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है। ठीक है, रिजिड डायनेमिक्स एक तरह की डायनेमिक्स होती है जिसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ बॉडीज होती है जो रिजिड होती है, जिनको रिजिड कंसीडर किया जाता है, और उसके बाद उसके ऊपर डायनेमिक्स लगाई जाती है। तो वहाँ पे इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए भी ये रिजिड डायनेमिक्स यूज़ करते हैं। एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ
मॉडल एनालिसिस, मॉडल एकॉस्टिक एंड रैंडम वाइब्रेशन एंड जो हाइड्रोडायनेमिक्स वगैरह जितनी भी सारी चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रो रेस्पॉन्स हो गए या फिर हाइड्रो डिफ्रैक्शन हो गए, हार्मोनिक रेस्पॉन्स हो गए, हार्मोनिक एकॉस्टिक हो गए, या फिर टर्बो मशीनरी फ्लूइड फ्लो हो गए। ठीक है, ये सारे इन सब के अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। टर्बो मशीनरी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये यूज़ किया जाता है, हार्मोनिक के लिए ये यूज़ किया जाता है, हार्मोनिक रेस्पॉन्स के लिए यूज़ ये, और एकॉस्टिक के लिए यूज़। ठीक है, हाइड्रोडायनेमिक डिफ्रैक्शन इसके लिए यूज़ किया जाता है, एंड हाइड्रोडायनेमिक रेस्पॉन्स ये डिफ्रैक्शन हो गया, हार्मोनिक रेस्पॉन्स हो गया, थर्मो इलेक्ट्रिक हो गया, रिजिड डायनेमिक्स, मॉडल एनालिसिस अपने वहाँ पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे अपने को रेजोनेंस कंडीशन का मतलब रेजोनेंस कंडीशन को अपने को मतलब कंसिडर करना पड़ता है कि अगर कोई मेरी चीज़ रेजोनेंस कंडीशन के अंदर आ रही है या फिर नहीं आ रही, कोई चेसी है या फिर कोई मेरे पास गाड़ी है जो वाइब्रेट कर रही है, तो वो कितने सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के बाद वो रेजोनेंस कंडीशन में आ जाएगी। तो ये चीज़ को चेक करने के लिए मॉडल एनालिसिस भी करते हैं अपन। अगर उसमें फ्रीक्वेंसी या फिर कुछ डैम्पिंग फैक्टर वगैरह ऐड करने हो, ये सब एड ऑन मॉड्यूल्स है, चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं इसके अंदर कि अगर इसके साथ मेरा ये भी हो जाए तो उसके लिए ये मॉड्यूल है। वाइब्रेशन की प्रॉब्लम हो, रैंडम वाइब्रेशन की, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इस जनरली ये सारे मॉड्यूल्स एनसेस प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है अपना कंपोनेंट सिस्टम। कंपोनेंट सिस्टम कुछ नहीं है, बस इनके सब पार्ट्स है। लाइक ये रिजल्ट्स मेरा यहाँ पे है, लाइक ये मेरा रिजल्ट यहाँ पे देखो, रिजल्ट यहाँ पे है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ रिजल्ट पे काम करना चाहता हूँ, तो मुझे रिजल्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से पर्टिकुलर रिजल्ट ले सकता हूँ। जैसे कि ये रहा रिजल्ट, पर्टिकुलर रिजल्ट पे काम करूँगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि नहीं, पर्टिकुलर मैं ज्योमेट्री पे काम करूँ, तो ज्योमेट्री को पकड़ के ड्रैग कर लिया तो सिर्फ ज्योमेट्री आएगी, मैं इसमें सिर्फ ज्योमेट्री बना पाऊँगा और कुछ नहीं कर पाऊँगा। फ्लुएंट के ऊपर काम करना है तो पर्टिकुलर फ्लुएंट पे, एक्सटर्नल डेटा, CFX, ब्लेड जनरेशन, ये सारे इनके सब कंपोनेंट्स हैं सारे। किसी के भी अब अंदर अपन सब कंपोनेंट्स को ऐड करके उनको मतलब उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक एनसेस का वर्क बेंच का इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ये सारे जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये सारे इंजीनियर्स यूज़ करते हैं, जो कमर्शियल इंजीनियर्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज़ में इंजीनियर्स हैं, या फिर जो रिसर्चर्स हैं जो R&Ds में काम करते हैं, वो इन सारे मॉड्यूल्स को यूज़ करते हैं। अगर आपको ये इनकी टेक्निक्स अच्छे से यूज़ करनी आ गई तो आप नॉट ओनली इन प्रोफेशनल इवन पर्सनल लेवल पे भी इसको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए आप किसी प्रॉब्लम को एक अलग लेवल पे देखोगे जो एक इंजीनियर नहीं देख पाता, क्योंकि इंजीनियर के पास ये कैपेबिलिटी होती है कि बस उसको थ्योरेटिकल अप्रोच पे उसको विजुलाइज कर पाता है। लेकिन अगर उसकी ये चीज़ें उसको आती है यूज़ करनी, तो उस प्रॉब्लम को वो एक अलग लेवल पे सोचता है जो कि दूसरे नहीं सोच पाते। ठीक है, यस या अब एनसेस के बारे में कोई डाउट या फिर मॉड्यूल्स के बारे में कोई डाउट हो तो पूछो, क्योंकि कल से और जो 3 दिन की वर्कशॉप है ये डेमो वर्कशॉप है। ठीक है, इसके अंदर आपको डेमो करवाया जाएगा। इसके अंदर आप किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डिटेल में बात नहीं की जाएगी, क्योंकि फ्री वर्कशॉप है। इसके अंदर पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स हैं, लाइक पहले दिन स्टैटिक स्ट्रक्चर चलेगा, इसके अंदर बेसिक स्टैटिक की जो प्रॉब्लम्स है आपको सॉल्व करनी बताई जाएगी। सेकेंड फेज़ में आपको बेसिक थर्मल की प्रॉब्लम सॉल्व करनी बताई जाएगी, एंड थर्ड फेज़ में आपको बेसिक एक्सप्लिसिट डायनेमिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करनी बताई जाएगी। ठीक है, जितने भी मॉड्यूल्स हैं ये सारे फ्री वर्कशॉप में कवर नहीं करवाए जाएंगे। अब इसमें कुछ डाउट है आपको कि लाइक ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये कैसे काम करता है, वो कैसे काम करता है, आप पूछ सकते हो। इंटरेक्टिव रखो सेशन, क्योंकि मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी बोलो कुछ। हेलो, हाँ सर मैं पूछा था कि हमने जैसे कोई प्रोडक्ट डिजाइन किया, उस पर हम लोड एनालिसिस कर रहे हैं, कुछ लोड क्या लग रहे हैं उस पर, तो किस तरह से करते हैं उसको? डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कैसा है। तो जैसे अगर यू जॉइंट बनाया हमने, कोई यूनिवर्सल जॉइंट बनाया, तो उसमें हमें देख रहे हैं कि कहाँ से टेंसाइल फोर्स लगेगी दोनों तरफ से, तो
कौन से पार्ट में एनालाइज करेंगे सर? आइदर इन स्टैटिक आइदर इन ट्रांजिएंट। अब आप यू जॉइंट की बात कर रहे हो तो आपको यू जॉइंट के बारे में पहले तो कंप्लीट स्टडी करनी पड़ेगी, थ्योरेटिकल अप्रोच आपको लगानी पड़ेगी, थ्योरेटिकल स्टडी करनी पड़ेगी आपको कि मेरा यू जॉइंट कहाँ पे यूज़ हो रहा है, उसके लिए मैं मटेरियल कौन सा ले रहा हूँ, क्या वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब सिमुलेशन करते हैं तो प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल माना जाता है। प्रॉब्लम सस्टेन कितनी कर रही है प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के अंदर, मेरी कॉस्ट को भी रिड्यूस करना है, जो मेरा प्रोडक्शन टाइम है उसको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। और जो मेरा प्रोडक्ट है वो लाइफ टाइम भी होना चाहिए, कहीं पे ब्रेक की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इन सारी चीज़ों को, इन सारी नहीं, इससे भी ज़्यादा चीज़ों को कंसीडर करके एक सिमुलेशन किया जाता है। और इस एक कंपोनेंट को सिमुलेशन करने के लिए कोई एक इंजीनियर नहीं होता, इन सबके अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, देखो अगर मैं स्टैटिक की बात करूं, सिर्फ स्टैटिक की, तो स्टैटिक जहाँ पे कोई इंडस्ट्री है जहाँ पे स्टैटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर रही है, लाइक किसी कंपोनेंट, जो अगर कोई कंपनी है कोई कंपोनेंट बना रही है, ठीक है, वो R&D कर रही है उस कंपोनेंट के ऊपर, तो वो स्टैटिक स्ट्रक्चर, अगर स्टैटिक मॉड्यूल यूज़ कर रही है, स्टैटिक ट्रांजिएंट वगैरह, तो उनके लिए इनके पास अलग अलग इंजीनियर्स होते हैं, क्योंकि सेफ्टी पहले कंसीडर की जाती है। ये सारी चीज़ों की जो रिपोर्ट्स हैं वो जाती है अथॉराइज के पास, और वो इस चीज़ को अथॉराइज करते हैं कि आपका प्रोडक्ट अथॉराइज है, कि इस प्रोडक्ट से जनहानि नहीं होगी। अगर एक ट्रेन बन रही है या फिर कोई ट्रेन का कंपोनेंट बन रहा है तो उसके पास उसकी प्रॉपर रिपोर्ट होती है, इससे कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रेन चलते चलते उसका हुक टूट गया, या फिर उसकी जो डीरेल हो गई, या फिर जो प्लेन है वो चलते चलते कहीं से मतलब उसका जेट इंजन बंद हो गया। तो इन सब के लिए अलग अलग होते हैं, बहुत मतलब कह दो कि अलग अलग रिसर्चर्स होते हैं, कि R&D टीम्स होती हैं जो इन चीज़ों पे काम करती है, R&D डिज़ाइन इंजीनियर्स हायर्स होते हैं इन सब चीज़ों पे काम करने के लिए, ठीक है। इंजीनियरिंग डेटा मटेरियल सिलेक्शन के लिए भी अलग इंजीनियर होते हैं, उस इंजीनियर को कंप्लीट मटेरियल की नॉलेज होगी कि कौन सा मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है, कौन सा मटेरियल मार्केट में नया आ रहा है, या फिर इस कंपोनेंट के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाना चाहिए, इस मटेरियल के लिए कौन सा कंपोनेंट का मटेरियल यूज़ करना चाहिए, क्या मेरी कंपनी ये मटेरियल यूज़ कर सकती है या नहीं कर सकती है, कंपनी को कोई लॉस तो है या नहीं है, ठीक है। तो मटेरियल के बारे में जितनी भी केस स्टडीज़ हैं, मटेरियल जो डिज़ाइन इंजीनियर होता है वो उस चीज़ को सॉल्व आउट करता है। ज्योमेट्री मॉडलिंग के लिए अलग डिज़ाइन इंजीनियर होता है जो सिर्फ ज्योमेट्री पे काम करता है, उन ज्योमेट्रीज़ पे जिनका सिमुलेशन करना है, क्योंकि ज्योमेट्रीज भी अलग अलग टाइप्स की होती है। प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट एक डिज़ाइन प्रोडक्ट अलग होता है, फाइनल प्रोडक्ट अलग होता है, जो सिमुलेशन वाला जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो अलग होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपने जो पूरा मोबाइल बनाया है, जो आपको मोबाइल दिख रहा है जिसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स है, उस कंपोनेंट को एज इट इज़ एंसेस में लेकर और इंस्टॉल कर लो, नहीं। इस चीज़ को अगर एंसेस के अंदर सिमुलेट करना तो इस मोबाइल को मुझे अलग तरीके से मतलब डिज़ाइन करना पड़ेगा सिमुलेशन पर्पज़ के हिसाब से, तो उसके लिए एक अलग इंजीनियर होता है। मॉडल के लिए जैसे कि मुझे अगर मैं मॉडल की अगर सीधी बात करूँ तो अपनी भाषा में इक्वेशन, वैसे इसका अलग मीनिंग होता है, लेकिन अगर सीधे समझाने के लिए कहूँ तो मैं इक्वेशन, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी इक्वेशन मुझे लगानी है, कौन सा मेथड बेस्ट रहेगा, इसके लिए अलग इंजीनियर। फिर मैं अगर बात करूँ सेटअप की मतलब कि कौन कौन सी मुझे फिजिक्स लगानी है इसके ऊपर, ठीक है। फिजिक्स मतलब कौन कौन सी कैलकुलेशंस लगानी है, अगर फिजिक्स की बात करूँ एंसर्स में, या फिर जो सिमुलेशन वाली जो टर्म्स होती है उसमें कैलकुलेशन को फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। तो कौन सी फिजिक्स मुझे लगानी है, लाइक मेरा लोड इतना लग रहा है, यहाँ से मेरी चीज़ फिक्स है, यहाँ पे डायनेमिक इटरेशंस चल रही है, ये कंडीशन डायनेमिक है, यहाँ पे इतने सब स्टेप्स है, इतने टाइम स्टेप्स जा रहे हैं मेरे, वो सारी चीज़ें इसका काम है सेटअप इंजीनियर का, फिजिक्स इंजीनियर। सॉल्यूशन जो ये चीज़ चेक करता है कि मेरी इटरेशन सही है या नहीं है, मतलब कि कंपैरिजन करता है कि अगर इतने सारे सॉल्यूशंस आ गए, इतने सारे सॉल्यूशन, तो उनको मतलब डिससिंथेसाइज कैसे किया जाए, सॉल्यूशंस के ऊपर बात करता है। फिर आता है रिजल्ट्स, ये वो इंजीनियर्स होते हैं जो कि रिजल्ट्स के ऊपर बात करते हैं, जिनके पास डेटा आता है, जिनको डेटा रीड करना आता हो। इन इंजीनियर्स को आप कोई भी डेटा दे दो, आइदर इन इमेज फॉर्म, आइदर इन कोडिंग फॉर्म, आइदर इन न्यूमेरिकल फॉर्म, किसी भी फॉर्म में डेटा दे दो, वो इस चीज़ को विजुअलाइज कर पाएंगे और उसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि ये प्रोडक्ट कितना चलेगा। तो इस हिसाब से पूरी R&D होती है और एक कंप्लीट फाइनल प्रोडक्ट बनता है। और एक कंपोनेंट को डिज़ाइन करने के लिए कम से कम बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा।
कम से कम टन्स ऑफ टाइम्स उसके ऊपर R&Ds होती है, तब जाके एक फाइनल आउटपुट एक बनता है डिज़ाइन का। और इनके लिए क्वांटम कंप्यूटर्स आते हैं। आप बेसिकली जो छोटे मोटे जो कंप्यूटर्स आते हैं चाहे 1 लाख 2 लाख उसके ऊपर कर सकते हो, लेकिन एक लिमिटेड टाइम स्टेप्स के लिए कर सकते हो आप। अगर मेरे पास कोई अच्छा लैपटॉप है या फिर कंप्यूटर है, उसके ऊपर मुझे कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 1 सेकेंड की प्रॉब्लम, 1 सेकेंड की प्रॉब्लम सॉल्व करूँ, जैसे कि कोई मेरी बॉल है उसको मैं ज़मीन पे गिरा रहा हूँ, तो ठीक है, तो 1 सेकेंड बाद क्या होगा, ठीक है। तो उस 1 सेकेंड को कैलकुलेट करने के लिए 1 सेकेंड को मुझे कम से कम अपने लैपटॉप को 1 दिन तक ऑन रखना पड़ेगा, कंटिन्यूसली चार्ज में लगा के, वो भी अगर कॉन्फ़िगरेशन अच्छी हो तो मेरी। अब आप सोचो कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम, ऐसे कोई गाड़ी चल रही है 100 की स्पीड से, ठीक है, वो गाड़ी भिड़ने में 2 मिनट लगाती है, कि 2 मिनट के अंदर गाड़ी पूरी भिड़ गई, 2 मिनट के अंदर गाड़ी का स्ट्रक्चर चेंज हो गया पूरा, पहले ये था बाद में जो गया, अब 2 मिनट के अंदर क्या हुआ, उस 2 मिनट को कैलकुलेट करना है। तो उस 2 मिनट को कैलकुलेट करने के लिए आपका लैपटॉप कभी कैलकुलेट नहीं करेगा, उसके लिए अलग कंप्यूटर्स आते हैं। कंपनीज ये प्रीफर करती हैं इन चीज़ों को, जो बड़ी बड़ी MNCs हैं उनके पास होते हैं क्वांटम कंप्यूटर्स, जो R&Ds करती है वो उन सिस्टम्स को प्रीफर करती है। इसके ऊपर टाइम स्टेप्स को ज़्यादा कैलकुलेट किया जाए, लाइक 2 मिनट 3 मिनट, तो उनको कंप्लीट स्टडी हो जाती है कि सच में अगर ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ 2, ठीक है, और ये प्रोडक्ट अगर ये जो बम्पर है या फिर जो टायर है इतने टाइम तक चलेगा, तो उसके ऊपर क्या क्या होगा, उस टायर के ऊपर वो कितने टाइम बाद ब्रेक होगा, कितनी हीट जनरेट करेगा, कितना ट्रैक्शन, फ्रिक्शन, सारी चीज़ें कंसिडर करेगा, कितनी देर में ठंडा होगा, तो सारी चीज़ें टाइम स्टेप्स से कंसिडर की जाती हैं। अब और कोई डाउट है तो पूछो। सर ये जो एनालिसिस करते हैं Yeah. तो उसके टाइम पे अपन को फोर्स की वैल्यू देनी पड़ती है, कितना फोर्स है, तो अपन वो कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि मतलब इतना ही टेंसाइल लगेगा या फिर इतना ही कंप्रेसिव लगेगा, ऊपर नीचे हो सकता है कुछ। टेंसाइल मतलब आप क्या कहना क्या चाहते हो, रिजल्ट्स के ऊपर बात कर रहे हो या फिर प्रॉब्लम के ऊपर? प्रॉब्लम इन द सेंस लाइक कि कितना फोर्स लगाना है, इसके ऊपर बात कर रहे हो? यस सर। उसके लिए अपन थ्योरेटिकल अप्रोच लगाते हैं, थ्योरेटिकली कैलकुलेशन होती है उस चीज़ की। एक तो होती है थ्योरेटिकली कैलकुलेशन, एक होती है आइडियल अप्रोच। आइडियल अप्रोच अगर मैं बात करूं, जैसे कि पहले तो मुझे आप एक इस चीज़ का क्वेश्चन आंसर दो, एक ह्यूमन कितना फोर्स जनरेट कर सकता है, ह्यूमन? कोई भी यार, आप सब 3rd ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हो, इवन कर भी चुके हो, आपको पता होना चाहिए ह्यूमन कितना फोर्स जनरेट कर सकता है बेसिकली। एवरेज, हाँ, एक एवरेज ह्यूमन, मैं बॉडी बिल्डर वोल्डर उनकी बात नहीं कर रहा, एक एवरेज ह्यूमन जो कि 20 to 21 के बीच में हो, फिट हो, वो कितना फोर्स जनरेट कर सकता है एक बार में? फुट की बात करूँ तो मैं, सर अपने वेट जितना उसका है, जो अगर 70 kg वेट है तो 70 into 10 700 न्यूटन हो गया। 70 to 80 न्यूटन जनरेट कर लेगा वो, क्योंकि फोर्स होता क्या है, एक तरह का वेट ही होता है। यस सर। है ना? तो अगर मैं उस चीज़ को मानूं, जैसे कि मेरे पास एक पंखा है, ठीक है, पंखे का वेट मुझे पता है, पंखे का वेट मुझे पता है, अब मैं उसको एक हुक के ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है, लगा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि उस हुक के कारण कितना वेट जनरेट कर रहा है, कितना फोर्स जनरेट कर रहा है, समझे? उससे मेरी फोर्स की वैल्यू आ गई। यस। या फिर मैं थ्योरेटिकल अप्रोच लगाऊँ, मेरे पास फॉर्मूलेज वगैरह हैं, उससे मैं निकाल लूँगा, F बराबर ma है, कुछ भी डायनेमिक कंडीशन में तो मैं ऐसे निकाल लूँगा मेरे पास। या फिर मैं आइडियल कंडीशन में लेके चलो कि मुझे पता है कि यार मुझे फोर्स की, मुझे वेट कुछ भी नहीं पता, अब मुझे देखना है कि अगर इस पंखे को मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो ये कब टूटेगा, कितना फोर्स लगाऊंगा कि टूट जाएगा। तो मुझे पता नहीं कितना फोर्स लगा, इनिशियली मैंने कम लगा दिया, इनिशियली फिर मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिया, फिर मैंने एक एवरेज फोर्स लगा दिया, तो उसके पास मेरे पास कुछ डेटा आ जाएगा, उस डेटा को मैं रीड करूँगा, उस डेटा को विजुअलाइज करूँगा, उस डेटा के ऊपर काम करूँगा, तो मेरे पास एक फाइनल आउटपुट की वैल्यू आएगी। गॉट इट? यस सर। ओके, और कोई क्वेश्चंस? कुछ भी, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़, आंसर्स। पूरी जो इंजीनियरिंग है वो इसके ऊपर ही डिपेंड करती है। अगर आपने ये चीज़ अच्छे से सीख रखी हो तो आप इंजीनियरिंग की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम।
इवन एडवांस इंजीनियरिंग की भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्वेश्चंस पूछ नहीं रहे हो, अब मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आपको। कल अपन डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये वाला मॉड्यूल पढ़ेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा कि आपको नॉलेज कितनी है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की। तो मुझे सबसे पहला मेरा क्वेश्चन यही है, स्ट्रेस क्या होता है? एनीवन, कोई भी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस load applied on the body. लोड अप्लाइड ऑन अ बॉडी, इट्स रॉन्ग। सर जब भी हम किसी मटेरियल पर फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, तो वो बॉडी उसके अपोजिट एक्ट करती है, तो अंदर उसके अंदर जो फोर्सेस लगते हैं वो सर स्ट्रेस, उनको स्ट्रेस बोलते हैं। एग्जैक्टली, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। ओके, अब मुझे एक चीज बता दो, स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है फिर? हेलो, सर प्रेशर तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लगता है और जो स्ट्रेस है वो पूरी बॉडी पर लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। यू आर ऑल इन थर्ड ईयर, फाइनल ईयर, आपको पता होना चाहिए स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस होता है। प्रेशर तो एक्सटर्नली अप्लाइड होता है और स्ट्रेस वो होता है जो बॉडी इंटरनली जनरेट करती है। तो फिर ये चीज़ बोलने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा, या तो बोलना नहीं चाहते। स्ट्रेस की यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर एटम स्क्वायर। और मेगा पास्कल। कौन दे रहा है जवाब? ये नाम बताएंगे अपना? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा, गुड। अभिषेक के अलावा कोई और भी मुझे बताएगा और क्या क्या यूनिट्स होती है? पास्कल। ठीक है, अब मुझे बताओ स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि कल ये चीज़ें मैं सारी सॉफ्टवेयर में कैलकुलेट करूंगा और आपको पता होनी चाहिए, वरना ऊपर से जाएगी सारी चीज़ें। जो मैं बुक के क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करेंगे इसके अंदर, इसीलिए स्ट्रेन क्या होता है? सर स्ट्रेन वो होता है कि कितना कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म या स्ट्रेच हुआ है, तो कैसे होता है। तो एक वर्ड में कहूँ तो स्ट्रेन क्या होता है? हेलो, चेंज इन लेंथ कह नहीं सकते, सम चेंज ऑफ डायमेंशन ऑफ द बॉडी। बॉडी की कुछ डायमेंशंस में चेंज हो रही है तो उसे स्ट्रेन का नेम दे सकते हैं, लाइक टेंसाइल, वॉल्यूमेट्रिक, कंप्रेसिव, शेयर। ओके, इलास्टिक लिमिट क्या होती है, या फिर इलास्टिसिटी कह दो तुम। स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना अपन मतलब स्ट्रेस जनरेट होता है बॉडी पर, उसके प्रोपोर्शनली स्ट्रेन भी जनरेट होता है। ओके, एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी? तो 1/* स्ट्रेन। 1/* स्ट्रेन ना, shear stress और shear strain। To the resistance to the deformation. चलो ये बताओ फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़।
अपना वर्किंग मैक्सिमम स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस बता रहे हो। मुझे एक एग्जांपल देके डिफाइन कर सकते हो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये है। जैसे अगर मैं बात करूं, मेरे पास कोई एक चम्मच है, उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 0.2, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं उससे क्या समझूंगा मैं? बस मुझे इतना बता दो। 0.2 है तो सर अपन उसको यूज करना गलत है, क्योंकि जैसे अब उसका वर्किंग स्ट्रेस तो जैसे 100 तो पर मतलब उसकी मैक्सिमम लिमिट ही 20 है और अपन 100 का स्ट्रेस लगा रहे हैं प्लस 50 0.2 तो गलत हो जाएगा। एग्जैक्टली किसने आंसर दिया ये? सर पीयूष। पीयूष बहुत अच्छे, बहुत। ये होती है फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी समझनी बहुत बहुत ज़रूरी होती है अगर आप कोई कंपोनेंट डिज़ाइन कर रहे हो, क्योंकि एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल की एक लिमिट होती है जिसे अपन अल्टीमेट लिमिट कहते हैं। अल्टीमेट लिमिट के अंदर स्ट्रेस भी आ सकता है, स्ट्रेन भी आ सकता है। स्ट्रेस में टेंसाइल भी आ सकता है, कंप्रेसिव भी आ सकता है। तो मुझे पता है कि मेरी मटेरियल की कैपेसिटी कितनी है, ठीक है। अब मेरे पास कोई कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट में मैं वो मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे जाहिर सी बात पता है, अगर मैं उसके ऊपर कुछ भी मैंने छेड़छाड़ की, छेड़छाड़ी मतलब फोर्स लगाए, मैंने कुछ भी इधर उधर के फोर्स लगाए और उस फोर्स के कारण उस मटेरियल की लिमिट नियर आ गई, ठीक है, मतलब कि नियर टू द वॉल आ गई, नियर टू द रिजल्ट्स आ गई या फिर नियर टू द लिमिट आ गई, तो मेरा मटेरियल ब्रेक हो जाएगा। तो मुझे इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ या फिर मैं ज्योमेट्री जो डिज़ाइन कर रहा हूँ वो ऐसी डिज़ाइन करूँ या फिर ऐसी फिजिक्स लगाऊँ कि जो मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी आए वो 1 2 3 4 ऐसी कुछ आए, ज़्यादा आए थोड़ी, ताकि मैं कॉन्फिडेंट हो सकूँ अपने प्रोडक्ट पे कि हाँ मेरा प्रोडक्ट इतना सेफ़ है। अगर मेरे को मेरी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 है तो मुझे जाहिर सी बात पता है कि जो मेरा वर्किंग स्ट्रेस है, जो फोर्स के कारण आ रहा है, फोर्स लगाने के कारण, और जो मेरा अल्टीमेट स्ट्रेस है जो कि मटेरियल का है, उन दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है ना। तो इससे मैं कह सकता हूँ कि मेरा डिज़ाइन सेफ है। समझ में आया? यस सर। कुछ डाउट्स इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी में? हेलो, नो सर, नो डाउट। ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व क्या होता है? सर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में। जब उस पर जब अपन फोर्स लगाते हैं तो अलग अलग पॉइंट्स पे, जैसे पॉइंट होगा जहाँ पर तो उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ को अचीव करेगा, एक पॉइंट होगा जहाँ पर वो रप्चर कर जाएगा। ओके ओके, ठीक है। चलो आज का जो अपना डिमॉन्स्ट्रेशन है यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। आज के जो डिमॉन्स्ट्रेशन था उसमें अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको डिज़ाइन जो होता है उसके बारे में मैंने रिवाइज़ किया, डिज़ाइन क्या होता है एग्जैक्टली डिज़ाइन क्या होता है, और सीएई का क्या स्कोप होता है, क्या क्या चीज़ें अपन जो सीएई में कर सकते हैं एज ए मैकेनिकल इंजीनियर, मेरे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। क्योंकि बहाने सबके पास होते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद पैकेज नहीं लगता। ऑफ कैंपस की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कि ऑफ कैंपस जॉब लेना आसान नहीं है, लेकिन अगर रियलिटी की बात करूँ तो ऑफ कैंपस जॉब लेना बहुत आसान है। बस शर्त है कि आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए लेने की। अगर आपको चीज़ें आती हैं, आपके अंदर कैपेबिलिटीज़ है, तो आप ऑफ कैंपस क्या ऑफ कंट्री भी जॉब ले सकते हो, ठीक है। मैंने इसके बारे में भी बात की, मैंने ये भी बताया कि सीएई क्या होता है एग्जैक्टली, इंजीनियरिंग का क्या रोल होता है सीएई में, एक सीएई इंजीनियर क्या होता है, क्या उसके रोल्स होते हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, सीएई के कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं। उसमें से एक एनसेस नाम का सॉफ्टवेयर, उसके बारे में मैंने डिटेल में बात की। एनसेस क्या होता है, उसकी खुद की क्या कैपेबिलिटीज़ होती है, एनसेस की क्या कैपेबिलिटीज़ होती है, क्या उसके मॉड्यूल्स होते हैं, कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं, और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स अपन उसके अंदर सॉल्व कर सकते हैं। R&D डिज़ाइन इंजीनियरिंग की मैंने बात की कि R&D के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे पूछिए, ग्रुप में क्वेश्चंस पूछिए,
कुछ डाउट्स वगैरह हो, क्योंकि कल से मॉड्यूल्स स्टार्ट करेंगे स्टैटिक स्ट्रक्चर। इसके लिए आपको मैं कुछ चीज़ें ग्रुप में बेसिक बता दूंगा, आपको क्या क्या पढ़ के आनी है। और ये मैं मान के चलता हूँ कि आज जितने बच्चों ने भी मीटिंग ज्वाइन की है वो सच में अपने फ्यूचर के लिए काफ़ी डेडिकेटेड है, या फिर लर्निंग पे फोकस रखना चाहते हैं। लर्निंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अर्निंग। अगर आपको लर्निंग अच्छी है आपकी, तो आप अर्निंग पे फोकस कर पाओगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो सीखने वाले बच्चे हैं उन्होंने ये डिमॉन्स्ट्रेशन लिया है और कहीं ना कहीं फ्यूचर में उनकी ये चीज़ें हेल्प करेगी। तो मैं जो चीज़ें ग्रुप में प्रोवाइड कराऊंगा आपको वो चीज़ें कल पढ़ के आनी है। कल मैं वो चीज़ें आपसे पूछूंगा एंड उसके बाद अपन स्टैटिक पे जंप करेंगे। कुछ डाउट? No, sir. ओके, थैंक यू टू ऑल।